मैंने कहा सुन, तेरे को आदत नहीं है नो सुनने की. मैं डिफरेंस बिटवीन अदर्स पर्सपेक्टिव एंड माय पर्सपेक्टिव इज एवरीबडी इज ट्रीटिंग यू लाइक ए स्पेशल ब्लेस्ड चाइल्ड. आई ट्रीट यू नॉर्मल. डू एंड डू, ओनली टू ऑप्शन. डाइंग इज नॉट एन ऑप्शन. जिम्मेदारी ना ली जाती है. अब तुम बोलोगे इसमें भी कांग्रेस पार्टी का हाथ है या बीजेपी का हाथ है ना, या आईएसआई का हाथ है. मैं हुज रिस्पॉन्सिबल. मैं तरस गया था 10 सेकंड के लिए कि 10 सेकंड एक बार बात हो जाए घर पे. आई जस्ट कैन टेल देम कि आई लव यू. उसके बाद मर गया तो कोई दिक्कत नहीं. फियर आपका डिसीजन मेकिंग को ड्राइव कर रहा है. सो हाउ डज वन मैनेज दैट फियर? रियलिटी चेक किसी ने दिया. सब कहते भाई तेरा पक्का हो जाएगा. मैंने कहा विद दिस स्टैंडर्ड मैं बड़ी कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा. तुम जवान भी नहीं बन सकते. मैं जो काम मैं खुद नहीं कर सकता ना, मैं आपको कभी नहीं बोलूँगा करने के लिए. एंड जो चीज़ मेरे में काबिलियत है करने की, वो मैं तुम्हारे को ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैं डंडे पे टांग के काम कराऊँगा, लेकिन कराऊँगा 100%. किसी दिन कोई लड़की या कोई और आता है, कहता है कि ये इससे थोड़ी प्रॉब्लम है, मेरे को स्टमक में ना इधर दर्द हो रहा है. 10 आवाज आती है, कहते इग्नोर. पेरेंट्स और रिलेटिव्स, पड़ोसी जब इस तरह बोलते हैं इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा. जिसका थोड़ा मन कमजोर है ना, वो इतनी बिठा लेता है मन में बात, कहता नहीं सर मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, सारी दुनिया कहती है. आई टेल देम मैं 100% कर सकता हूँ. आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हो, दुनिया भर के दोस्त हैं आपके, अलग अलग सोशल मीडिया, फिर भी आप लोनलीनेस, दैट मींस योर चॉइस इज नॉट करेक्ट. रिजेक्शन को कैसे हैंडल करें बेसिकली? एक्सेप्ट इट ना. वो भाई जहाँ आपकी चॉइस मैटर करती है, इट इज द चॉइस ऑफ द अदर पर्सन आल्सो. Welcome to the Journey Within podcast with me, Shobha Rana. This is a podcast where we deep dive into the personal growth journeys of our guests, their journeys, their experiences, the life that they have lived. From that, we try to seek some insights and wisdom on how to live this life better. We try to improve our personal self, walk towards this journey of self-discovery and living our best life. But before we get into today's episode, there's something interesting that we have found out at our YouTube analytics. Now, 80% of our listeners, that is you guys, are not our subscribers. So, आप आ रहे हो चैनल पे, content भी देख रहे हो, लेकिन आप subscribe नहीं कर रहे हो. So, a humble request to all of you, please subscribe to the channel. Please do like, comment and share the content that you really liked. If it is worth it, don't be shy in sharing about it. Spread it to your friends, families, and help us reach a wider audience so that with these relevant conversations about our journey within to understand our inner world, we can help more people. Now, let's get back to today's episode. Today, I've got an inspiring gentleman with me in the studio. I'm going to refer to him as Sir throughout this episode. He served in the Indian Army for 21 years. He has been a part of several combats and national and international operations. His skills, not only on the field, but also with people, has made him everybody's favorite. He is quite popular on the internet as well, and he's been training and transforming people's life to become just a better version of themselves. And also, he's inspiring the youth to join the army. Please welcome on my show, Colonel Rajiv Behrwan. Hello, sir. How are you? God has been kind, fighting fit, as usual. I am not sitting ladylike how they teach you in the Indian Army. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. I always say it is an other person who is in front of me. Their comfort count. If you're comfortable, I'm okay. I am very comfortable sitting like that this. That counts. Not an issue. Thank you. Sir, your journey has been truly inspirational. आपने जो आर्मी में serve किया 21 years and the missions that you have been a part of, the international missions that you've been a part of, forces that you've been a part of, all of that is inspiring for the youth. लेकिन आपका Instagram bio कहता है कि आप सोल्जर हो, टीचर हो और हीलर हो. So I want to know कि ये जो जर्नी एक सोल्जर की है, how is it becoming a journey of a teacher and a healer now? Okay, first thing first, सोल्जर हूँ that is verified, you know. जैसे LinkedIn पे बोलते हैं verification done, verified. But teacher और healer ये दो काम कर रहा हूँ मैं. Definitely I'm doing it. I'm very satisfied. डिग्री किसी भी चीज़ की नहीं मेरे पास में, है ना, सर्टिफिकेट नहीं है, बट काम जरूर कर रहा हूँ. एंड सो फार आई हैव पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स. आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी एंड सैटिस्फाइड डूइंग बोथ द थिंग्स. एंड कहाँ से शुरू हुआ? शुरू तो मैंने किया था लोगों को कि भाई है ना सोल्जर बनाऊंगा एंड सोल्जरली क्वालिटीज.
When I came, मुझे लगा कि ऑपरेशन तो मैं कर नहीं सकता अभी, बिकॉज इन सेकेंड इनिंग्स है ना, आई एम नॉट ऑथराइज टू डू दैट थिंग. एंड सेकेंड बेस्ट थिंग बट आई एम गुड एट, जो मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ, दैट वॉज ट्रेनिंग. सो ट्रेनिंग के एस्पेक्ट्स हैं फिजिकल है ना, मेंटल एंड ओरिएंटिंग द यूथ दोज हु वांट टू जॉइन आर्मी. सो इनिशियली शुरू तो वैसे ही किया था, बट स्लोली एंड प्रोग्रेसिवली मुझे लगा कि ना लॉट ऑफ पीपल दे आर कनेक्टिंग विद देम, एंड आई एम गुड एट इन्वेस्टमेंट. जब लोग बात करते हैं, पीपल टॉक इन टर्म्स ऑफ मनी. मैथ्स मेरी हमेशा से खराब रही है, तो पैसा भी मुझे थोड़ा कम समझ में आता है. बट इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ पीपल एंड इन्वेस्टिंग माई इमोशंस एंड माई एफर्ट्स इन टू पीपल, आई एम वेरी गुड एट. वो मैं मन से करता हूँ. दिमाग थोड़ा कम लगाता हूँ, दिमाग की जगह दिल पूरा लगाता हूँ. सो आई इन्वेस्टेड इन माई बैचेस जो आने लगे स्टूडेंट्स उनमें, एंड आई रियलाइज आई सीन द पॉजिटिव चेंजेस इन देम, उनमें, उनके पेरेंट्स में, द पॉजिटिव फीडबैक विच आई गॉट फ्रॉम द एनवायरमेंट. सो दैट वाज ए वेकअप कॉल फॉर मी कि है ना कि आई एम गोइंग द गुड डायरेक्शन. बिकॉज है ना, अपने आप को तो आप खुद कुछ भी डिक्लेयर कर दो, बट until unless you get a positive feedback and a reality check from the environment, na? So people told me. And then one girl, Shrishti, she was in my batch second. She had given me a name, Colonel Magic. मैंने कहा, really, I can do magic? She says, you had done magic. मैं I've got magical powers. कहते yes. तो वहाँ से भरोसा आया कि मैं, अगर उसने भरोसे में बोला है सृष्टि ने कि भी yes, Colonel Magic, तो I need to live up to that name. So not that I wanted to do some magic, but मैंने कोशिश करके देखता हूँ, है ना, something good I can do. And वहाँ से कहानी शुरू हुई थी, and then I've seen when people came, so we connected at a level, because I never call it an academy. People say coaching, man, no, I don't do any kind of coaching. You know, I train people. Training demands a lot of investment, a lot of involvement. कोचिंग में जोर नहीं लगता. इट्स सेट टेम्पलेट, ये चीज़ ऐसे है, इसको ऐसे करना है, देयर आर 3 ways to do it. तो कोचिंग में बताया जाता है कि अगर इस एग्जाम में पास होना है तो ऐसे करना है, इफ यू वांट टू क्रैक एसएसबी तो ऐसे करना है. ऑन द कॉन्ट्रेरी, मैं पहले दिन बताता हूँ, आप जैसे हैं अच्छे हैं, एक्सेप्टेबल है, सिर्फ अपने तरीके चेंज करेंगे मेरे साथ रह करके, है ना. एंड इफ यू गॉट सम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी, मैं फॉरगेट अबाउट इट. आई विल गिव यू रियलिटी चेक एंड आई विल गिव यू रियलाइजेशन. ये 2 काम करूँगा मैं, एंड मैं उस पर फोकस करता हूँ. आई डोंट इशू सेट टेम्पलेट्स, बिकॉज हर इंसान अलग तरीके से आता है, उसका बैकग्राउंड अलग है, उसके पास एक्सपीरियंसेस अलग हैं. तो एवरी पर्सन आई ट्रीट देम एज इंडिविजुअल. हर एक को अलग तरीके से देखता हूँ, बेस्ड ऑन देयर एज ग्रुप, देयर एक्सपीरियंसेस, देयर प्रॉब्लम्स. एंड उसमें बहुत जोर लगता है. बच्चे के साथ बच्चा बनना पड़ता है. कोई मुझसे उम्र में बड़ा है तो मैं उनकी बात अलग से सुनता हूँ. जब वो आते हैं ऑफिस में, मैं पहले मैं खड़ा होता हूँ, मैं सर प्लीज सेट, दे कॉल मी सर. मैंने कहा सर यू आर एल्डर टू मी, है ना, 8 years 10 years, डोंट कॉल मी सर. ये नहीं सर, यहाँ मैं सीखने आया हूँ, यू आर सर. ओके. फिर एक छोटे बच्चे ने नाम दिया मुझे मम्मा सर, है ना, बिकॉज ही आस्क्ड मी कि आपका नाम क्या है, आई लव किड्स. तो मैंने मम्मा. इससे मम्मा, बट वो कौन है? मैं वो आंटी है, हर ओन मदर, हिज ओन मदर. ही स्टार्टेड कॉलिंग कि मैं उनको आंटी बोलूँगा. देन उसको समझाया कि उस सर बोलना है. ही मेड सम कॉकटेल काइंड ऑफ थिंग, मम्मा सर. एंड उस बोर्ड ने मेरे को बड़ा हौसला दिया. एंड देन उसके बाद में एवरीबडी स्टार्टेड कॉलिंग मी मम्मा सर. तो मुझे बहुत हौसला आया. एंड फिर एक बच्चे ने, किसी ने ये भी लिखा है ना, आई गॉट अ हैंड रिटन नोट बाय कपिल. तो ही रोट 2 pages नोट फॉर मी, एंड ही सेड कि यू हैड गिवन रीबर्थ टू मेनी लाइव्स, एंड दैट हैज गिवन मी अमेजिंग कॉन्फिडेंस. फिर उसने कई चीज़ें मुझे बताई. कहता है सर आई विल एक्सप्लेन टू यू, आई हैव रिटन एवरी लाइन. एंड ही रिटन इन दैट कि यू बर्न योरसेल्फ टू एन इग्नाइट अदर्स. मैं पोइटिक अंदाज में नहीं है, कहता सर मैं बताता हूँ आपको, कारण बताता हूँ. वाई यू मेक स्टोन्स क्राई. मेरा ये तो बुरी आदत है, जो आते हैं मेरे पास में रोते तो बहुत है, ठीक है, बट जब वो वापस जाते हैं ना, तो मैं उनको बहुत वो कन्फर्म करके जाते हैं मेरे कि सर आई केम लाइक दिस, बट मैं अब जा रही हूँ, बिल्कुल नहीं रहूँगी सर, है ना, खुश रह के दिखाऊंगी. मैसेज भी लिखते हैं, सर मैं बिल्कुल नहीं रोती हूँ अभी. एंड पीपल से कि पहले मैं बहुत चिड़चिड़ी थी, अब मैं बहुत खुश रहती हूँ. बॉयज ऑल्सो कन्फर्म कि सर पहले मैं हर चीज़ में शिकायत करता था, बट टुडे नाउ आई एम फाइटिंग इट आउट वेल. एंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आई हैव सीन. कैंसर, molestation, rape cases, loneliness, anxiety, depression, physical abuse, ठीक है, bullying, parent child issues, a lot of things I've seen. पर जब वो वापस जाते हैं तो हर एक आदमी को उसके हिसाब से मैं समझाता हूँ, बताता हूँ कि ना ऐसे हैंडल करना है इस चीज़ को, ठीक है, एग्जैक्टली इस पोजीशन में बैठना, ये बात करनी है, ये पक्का बोलना है, ये करना है. एंड देन गिव मी फीडबैक. 3 दिन में पक्का हो जाना चाहिए काम, अदरवाइज आई विल पुट यू ऑन ब्लॉक. राइटर देता हूँ साथ में, मैं तो को 1 महीना लगेगा बट हो जाएगा. फिर किसी ने बोला कि सर मदर एक्सपायर हो गई, एंड व्हेन शी वाज इन आईसीयू आई वाज हैविंग पार्टी दैट टाइम. आई एम सच अ बैड गाय. मैंने कहा बट कोई बात नहीं, यू नो, गिल्ट में आदमी जिंदा नहीं रहता कभी. गिल्ट इज अ बैड थिंग. तुझे आज एहसास है ना, अच्छी बात है. समझाता भी हूँ मैं जो मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को ना, बहुत मन से बता रहा हूँ.
अगर अभी मेरी बात को समझ जाओगे तो एहसास कहलाएगा, और नहीं मानोगे मेरी बात ना तो अफसोस कहलाएगा. यू टेल मी व्हाट यू वांट, एहसास चाहिए अफसोस चाहिए? ऑफ कोर्स सर एहसास चाहिए. तो मैं देन लिसन टू मी, देन आई एक्सप्लेन थिंग्स टू देम. मैं उसको बताया. ही सेड उसके बाद में 4 भाई हैं, सब अलग अलग रहते हैं, फादर भी कमज़ोर होते जा रहे हैं, एंड आई फील बैड अबाउट इट. मैं व्हाट यू हैव डन, ये तो कंप्लेन होगी. यू टेल मी योर पार्ट, व्हाट यू हैव डन टू रिपेयर दिस थिंग. कैसा आई एम द यंगेस्ट, व्हाट कैन आई डू. मैं क्यों घर में खाना नहीं खा रहा? क्या खा रहा हूँ मैं, घर में रह रहा है. बोला हाँ. मैं जिम्मेदारी कब लेगा, छोटे लोग भी अच्छा काम कर सकते हैं. यू ट्राइड. एंड फिर उसको समझाया क्या करना है. एंड देन ही गिवन एग्जैक्टली 1 महीना दिया था. ही सेड टास्क डन. ऑल ब्रदर्स दे केम बैक होम, वी आर सिटिंग ऑन वन डाइनिंग टेबल हैविंग फूड. मैं गुड, मैं छोटा है तो भी कर सकता है. तो जब देखा ना करते हैं लोगों को, एंड जब फीडबैक पॉजिटिव आने लगा कि सर मैंने भी कर लिया 3 दिन में, 1 हफ्ते में, घर में रिलेशंस अच्छे हो गए, अब ये हो गया. तो मैं आने के बाद मैं बोलता हूँ पहले दिन में जो प्रॉब्लम है मेरे को है ना कागज़ में लिख करके देना. पढ़ता मैं कभी भी नहीं हूँ, बट बोल देता हूँ उनको, वो लिख देते हैं एटलीस्ट, दे ओपन अप. बट बाद में खुद आकर के मुझे बताते हैं. एंड आई टेक देम टू सच ए लेवल, मैंने 100 लोगों के सामने मैं यहाँ खड़े होकर के बता अपनी प्रॉब्लम क्या है. एवरीबडी शुड लिसन. और कई बार ऐसे एक्सट्रीम केस होते हैं, मैं आप बताओ कितने लोगों को लगता है लाइफ में प्रॉब्लम है. कैसा अभी लग रहा था बहुत प्रॉब्लम है, बट अब इसके बाद में सर लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर. अगर हमारी भी प्रॉब्लम है तो व्हाट वी हर्ड सर इट इज़ अनबिलीवेबल. कह कोई प्रॉब्लम नहीं है. दे स्टे लाइक फैमिली. एक बंदे की प्रॉब्लम होती है, 100 लोग आते हैं साथ में कंधा देने के लिए, रोने के लिए. सो दैट इज गिवन अमेजिंग कॉन्फिडेंस. तो मुझे लगता है ना कि एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट हो रहा है. व्हेन पीपल सी, आई टेल यू सिंपल सी बात है, यू वांट टू स्टे हैप्पी, you want to stay motivated, everyone wants that. But the problem is, and what I tell them, if you want to stay happy na, and if you want people around you happy, first you need to learn to stay happy. If you want people around you to stay motivated, first you need to keep yourself motivated. आप खुद ही motivated नहीं, आप दूसरों को क्या motivate करोगे. शिकायत सारे लगाते हैं, solution है ना सबको रेडीमेड चाहिए, tailored solution. काम कोई नहीं करना चाहता. But I give them that confidence, 100% solve हो जाएगा, but काम तुम करो, बाहर से कोई नहीं आया करने के लिए. The reality check is a must. So this is what I'm doing. So this is what you do as a teacher in your camp. As a teacher, yeah. Or academy. जिसको आप academy नहीं बुलाते हो. Academy नहीं है. लेकिन that's where you, that's where you train students to appear for the SSB exam, yes, for NDA, and also train them for life with these life skills. Life skills. देखिए अगर कोई लाइफ के लिए तैयार है तो SSB कौन सी बड़ी चीज है. Why you want to prepare yourself only for 5 But days? why are kids so scared of appearing for SSB? मैं देखती हूँ लोग 2-2, 3-3 साल प्रिपेयर कर रहे होते हैं, प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उसके बाद भी क्लियर नहीं होता है. नहीं होता है. हाँ जी. वो इसलिए है बिकॉज है ना, आप दुनिया को बोल लीजिए, मार्केट बोल लीजिए, बिजनेस बोल लीजिए, 2 चीज़ों पे काम करती है. वन इज इधर यू ल्यूर समवन और सेकंड यू स्केयर देम. यू नो, डर के आगे, डर के आदमी मोर बन के नाचता है. आपको बताया जाता है मार्केट में दिस वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, इतने लाखों लोग आते हैं और परसेंटेज है ना, सिलेक्शन रेट इज सो वेरी लेस, और यू ल्यूर देम. नंबर 1 रैंक और स्टूडेंट, सो मैनी सक्सेस स्टोरीज. तो आदमी या तो उस उम्मीद में जाता है ल्यूर होकर के, या फिर डर के मारे कि बहुत मुश्किल है, मुझे कोचिंग लेनी पड़ेगी. मैं तो बहुतों को बताता हूँ पहले तो, मैं नीड नॉट डू एनी ट्रेनिंग, जैसा है बिल्कुल ठीक है, चला जा सीधा, हो जाएगा. झूठ मत बोलना. एंड अदरवाइज क्या है, मैं तू चेक करके देख किसी भी अकेडमी में, अगर तेरे कोई बोले कि आपको आने की जरूरत नहीं, दिल टेल यू कि आपको बहुत ज़रूरी है. देयर आर पीपल हु कम, दे कांट इवन स्पीक 1 लैंग्वेज, अपना 1 लाइन इन इंग्लिश, ठीक है, फिर भी उनको एडमिशन देते हैं लोग. मेरे पास आता है, मैं उनको बताता हूँ, मैं बेटा सुनना ऐसा है, मैं आपको सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिखाने के बाद में व्हेन यू कैन नॉट ट्रांसलेट द सेम थिंग ऑन ग्राउंड, व्हाट इज द पॉइंट. मैं गिल्ट में कोई काम नहीं करता. इफ आई गिव यू एडमिशन टुडे, आप बाद में जाके कहीं ना कहीं फंसोगे, बिकॉज आपको भाषा भी पकड़ नहीं है. मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं आपको सब सिखा सकता हूँ, भाषा नहीं सिखा सकता. एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, देयर इज नॉट अ राइट टाइम. मैं तो 6 महीने देता हूँ, तरीके बताता हूँ, इंग्लिश कैसे सीख सकता है, पढ़ना लिखना बोलना, काम करके दिखा, गिव मी सम कॉन्फिडेंस, लगना चाहिए मुझे तूने मेहनत करी है. करेगा 100% जान लगा दूंगा तेरे ऊपर, बट अभी लेगा तो सिर्फ पैसे देगा, हार्ड अर्न मनी ऑफ योर पेरेंट्स, नतीजा कुछ नहीं आएगा, यू नो. एंड देन फिर तेरा भी मन टूटेगा, माँ बाप के पैसे भी खराब होंगे, एंड मुझे भी गिल्ट आएगा. व्हेन आई फुल्ली नो कि तीनों चीज़ खराब होने वाली है, मेरी मेहनत, आपका टाइम है, पेरेंट्स के, माँ बाप के पैसे, तो व्हाई शुड आई गिव यू एडमिशन. और मैं तो चेक करके देख, हिंदुस्तान में कोई भी अकेडमी अगर तुझे मना कर दो, बोलेंगे बहुत सही जगह अपने फ़ोन किया, अभी एडमिशन लो, लास्ट 2 सीट्स आर अवेलेबल, लास्ट डेट, लास्ट दिस थिंग. मैं तो कभी करता ही नहीं. कई बार लोग कोलैब के लिए डाल देते हैं. मैंने कहा जो आदमी अपनी खुद की ब्रांडिंग नहीं कर रहा, आपको क्यों लग रहा है कि मैं आपकी मार्केटिंग करूँगा. कोई फैशन शो से है, कुछ दवाई के लिए है, कुछ. मैं दवाई मैंने ज़िंदगी में नहीं खाई, व्हाई शुड आई डू फॉर एनी मेडिसिन, यू नो. मैं लोगों को कहता हूँ फिट रहो. एज अ टीचर, एज अ कोच, आप टफ लव में बिलीव करते हो? टफ लव, हाँ. ओके, व्हाट इज टफ लव, प्लीज एक्सप्लेन. टफ लव इज बेसिकली जब आप
किसी को बहुत कैसे हिंदी में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हिंदी, पंजाबी, नेपाली ये नहीं मेरी तो हिंदी टफ लव, मतलब जो सख्ती से आप किसी को उसके भले के लिए बोल रहे हो, लेकिन वो उस वक्त ऐसा नहीं लग रहा है कि वो भले के लिए बोल रहे हैं, जिसको बोला जा रहा है, दैट इज टफ लव। लाइक जैसे हमारे पेरेंट्स हमें गुस्से से डांट देते हैं या किसी चीज के लिए झड़क देते हैं, तो दैट इज हक के साथ जो किया जाता है, करता हूं मैं, लेकिन जिसके साथ होता है उसको नहीं लगता है कि ये मेरे भले के लिए हो रहा है। मैं आई टोल्ड यू ना, आई डू ओनली टू थिंग्स, वन इज रियलिटी चेक एंड सेकंड इज रियलाइजेशन। जितने स्टूडेंट्स आते हैं, वन ऑफ द गर्ल हैड रिटन ऑन माय क्लास, दिस इज नॉट अ क्लास ऑफ एक्सपेक्टेशन, इट इज अ क्लास ऑफ रियलाइजेशन। मैं पढ़ता हूँ, मुझे बैठ जाता है लास्ट में कि क्या मैसेज लिख के गए मेरे लिए, एंड इट स्टक मी हार्ड, ये बात सही है। तो पहले 2 दिन में कई बार बताते हैं, सब बैरक में बहुत लोग रो रहे हैं, क्यों? उनका कॉन्फिडेंस डाउन जाता है मेरे पास आके, रियलिटी चेक किसी ने दिया, सब कहते भाई तेरा पक्का हो जाएगा। मैंने कहा विद दिस स्टैंडर्ड मैं बड़ी कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, तुम जवान भी नहीं बन सकते, ठीक है? 2 लाइन तुमसे नहीं बोली जाती, वहम इतना तुम्हारे को, कपड़े पहनने का तरीका नहीं पता है, सीधे बैठ नहीं सकते, हैंड मूवमेंट इतने करते हैं, वो गिविंग यू फॉल्स कॉन्फिडेंस। वहाँ से सीखा है, मैं ऐसे नहीं होता काम, काम करने का तरीका ठीक करना पड़ेगा। मैं खड़ा करता हूँ एंड कमरे में अपने लेक्चर देना होता है, मैं तो उनको वहाँ से अपने से 100 मीटर दूर खड़ा करता हूँ, आई गो एट हाइट एंड दे आर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। मेरी आवाज़ वहाँ पे पहुँचनी चाहिए, नहीं आई और दूर भेज दूंगा। रात को 2 बजे खड़े हो गए, बारिश में खड़े हो गए, मैं बोलो, नहीं बोलेगा चौराहे पे भी खड़ा कर दूंगा पब्लिक के बीच में, बोलो। तो कॉन्फिडेंस गोज वेरी डाउन कि यार ये आदमी क्या कर रहा है हमारे साथ। मैंने कहा आप देखो काबिलियत कैसी है, एंड बहुत एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। वन ऑफ द गाय ही केम ऑल द वे फ्रॉम रांची, एंड करण को मैं लेके गया, सर वो पब्लिक में बोलने में दिक्कत होती है, मुझे बहुत मुश्किल है। ओके, मैं उसको लेके गया, रोड के बीचों बीच खड़ा किया मैंने ऑटो स्टैंड पे। मैं बोल क्या सर यहाँ पे वहीं चलेगा? मैं नहीं, यही बोलेगा। कैसे मुश्किल है, मैं रुक। फिर मैंने एक ऑटो रिक्शा वाले को बुलाया था जो साथ में था वहाँ पे, मैं दोस्त इधर आओ, मैं एक बात बताओ, अगर आपको 3 मिनट यहाँ बोलने के लिए बोल दूँ मैं आपको, और ऑफिसर बना दूँ आपको इंडियन आर्मी में, बोल दोगे? कहते सब पक्का बना दोगे? 100%। कैसा आप 10 घंटे बोलूँगा। ओके, पढ़े लिखे कितने हो? कहता पढ़ा लिखा होता तो ऑटो रिक्शा थोड़ी चलाता साहब मैं। ओके गुड, थैंक यू। फिर आई आस्क्ड हिम, मैं तुम दोनों से एजुकेशन किसकी ज़्यादा अच्छी है? सर ऑब्वियसली मेरी है। मैं पैसे किसके चाहता है? मतलब मेरे पास। मैं कपड़े किसके अच्छे हैं? बोला सर मेरे। मैं सोशल स्टेटस किसका अच्छा? बोला सर मेरा है। मैं कॉन्फिडेंस किसका ज़्यादा है? कैसा? आई गॉट योर पॉइंट। मैं कॉन्फिडेंस उसका ज़्यादा है ना, वाई यू थिंक मतलब यू डिजर्व दिस थिंग। मैं उसका कुछ नहीं हो, कह रहा 10 घंटे बोलूँगा साहब, जोर मारने के लिए कम से कम तैयार है, अनपढ़ आदमी। सब कुछ होने के बाद में जान है नहीं तो मैं बोल रहा पहलवान बनूंगा, नहीं बनेगा कुछ तरह, ठीक है? लॉट मेनी पीपल से कि सर मुझे डाउट आ रहा है, पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा। अच्छा सर, वो मुझे लग रहा है अगर नहीं हुआ तो बिकॉज फ्यूचर में मेरे को मेडिकल प्रॉब्लम होगी, तो मैंने कहा जैसा लाइफ में सोचोगे 100% वैसा ही होगा। मैं तुम्हारी नीयत इतनी अच्छी है, मुझे ऐसा हो गया वैसा हो गया, मेरा मेडिकल प्रॉब्लम है, 100% आएगी प्रॉब्लम तुझे, बिकॉज यू थिंकिंग दैट थिंग, व्हाट यू थिंक ना इट डेफिनेटली मैनिफेस्ट, नेचर मैनिफेस्टेड ऑन दिस थिंग, ठीक है? वो वैसा ही होता है। वो लड़का जिसकी मैं बात बता रहा हूँ, करण फ्रॉम रांची, ही इज डूइंग हिज ट्रेनिंग इन इंडियन मिलिट्री एकेडमी टुडे, ठीक है? अभी लास्ट मंथ ओनली इज ज्वाइन। वहाँ से स्टार्ट ऑफ किया था, कह सर नहीं मैं सब कुछ हो जाएगा, तू सोच के देख एक बारी, यू नो, एवरीथिंग मैनिफेस्ट ऑन ग्राउंड। दूसरा, मैं हमेशा उनको बताता हूँ कि मैं जो काम मैं खुद नहीं कर सकता ना, वो मैं आपको कभी नहीं बोलूँगा करने के लिए, एंड जो चीज़ मेरे में काबिलियत है करने की, वो मैं तुम्हारे को ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैं डंडे में टांग के काम कराऊंगा, लेकिन कराऊंगा 100%, पक्का होगा। आई पुश यू टू एनी एक्सटेंट टू गेट द जॉब डन। सो दैट इज टफ लव, दैट इज टफ लव। एंड मैं मुक्का मारने से पहले भी नहीं सोचता जितनी जोर से मुक्का मारना है, मतलब सी टफ लव। कोई कहता ना सर मेरी हर चीज़ में, यू आस्क माय स्टूडेंट दिल टेल यू, पहले दिन जाएंगे सर वो मेरी टांग में से चोट लग गई दौड़ने में। ओके, मैं जिम जाता ना तो हाँ सर बिल्कुल नहीं हो रहा सर, सच में बड़ा दर्द हो रहा है, क्या करना चाहिए? मैं इधर आओ, मैं इग्नोर। ओके सर। फिर दूसरे दिन आता कोई, सर यहाँ से पूरा छिल गया यहाँ पे, सर क्या करना? मैं इग्नोर। क्या? ठीक है सर। फिर तीसरे दिन कोई लड़की या कोई और आता है, कहते हैं कि ये सर थोड़ी प्रॉब्लम है मेरे को, स्टमक में ना इधर दर्द हो रहा है, तो 10 आवाज आती है, कहते इग्नोर। क्या सॉल्यूशन यही की है, इस आदमी को कुछ मत बताओ, इग्नोर। बहुत कुछ नहीं होता। तो दे हैव लर्न दिस लेसन में, छोटी मोटी हर चीज में तुम्हें रिपोर्ट करना है कि प्रॉब्लम है, तो दे इग्नोर, दे लर्न। इग्नोरेंस इज अ ब्लेस, यू नो। कोई भी कुछ बोलता है, कमेंट लोग रो देते हैं, रियलाइज किया, इग्नोर करो जो चीज़ है ना, हर एक चीज़ को इंपॉर्टेंट देने की जरूरत नहीं है। आई एम रियली बीइंग वेरी टफ। बट ऐसे इग्नोर करने से कभी कभार इंपॉर्टेंट थिंग्स आल्सो गेट इग्नोर्ड। नो, यू शुड नो द डिफरेंस, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ द पीपल टुडे, व्हाट आई हैव सीन इन द एनवायरनमेंट, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया है, अभी हम बैठे बात कर रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा 10 कमेंट आ जाएंगे, ठीक है? इसके कई लोग हैं जो बुरे कमेंट भी लिख देंगे,
कोई बोलेगा नहीं आपके बैठने का तरीका ठीक नहीं था, है ना, आपका ये ठीक नहीं था, आपका वो ठीक नहीं था, बट द वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू चेंज। आप चेक कर लो उसके कमेंट से पहले मैंने लिखा किसी को, है ना, मैंने कहा सी मैं द साइज ऑफ द वर्ल्ड ना, बिफोर योर कमेंट एंड आफ्टर द कमेंट इज एग्जैक्टली द सेम। इट डजंट अफेक्ट माय हेल्थ, यू नो, आई हैड ग्रोन ओवर दैट टाइम कि आप कुछ बोलोगे मेरी मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ेगा, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा मेरे, ठीक है, नॉट गोइंग टू अफेक्ट मी। एक बंदे ने लिख दिया, वीडियो देख के कोई था, उसने लिखा 3rd क्लास, द स्पेलिंग वाज THIRTH। मैं पढ़ता हूँ, लोग बोलते से डिलीट कर दे, मैंने आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गाय, आई ऑलवेज लव थिंग्स, है ना, आने दो सामने से मैं जवाब दूंगा। तो मैंने उसे लिखा, मैं व्हाइल आई एम एब्सोल्युटली ओके विद योर ओपिनियन ना, 3rd क्लास, मैं what amuses me is a person who does not know the correct spelling of 3rd also holds your opinion, you know. Anyway, my darling, never too late to learn. The correct spelling is THIRD. My God bless you. He said sorry sir, and then he's following me. ऐसे बहुत लोग होते हैं जो पहले करते हैं, कुछ लिखते हैं, फिर मैं जवाब देता हूँ, then they follow. Now your choice. Nobody invited you. Sir, you were just talking about social media. हाँ जी. Now the youth today that wants to join an army on the one hand, on the other hand, the youth is also deeply connected to people on their social medias, right? तो दो तरह की जिंदगी हम लीड कर रहे हैं, जहाँ पे हमारी एस्पिरेशन तो बहुत कुछ करने की है, बट हम ये सोशल मीडिया के जंजाल से नहीं निकल पा रहे हैं। एंड somebody who aspires to join the Indian Army, he has to stay disconnected from the rest of the world. So how do they deal with this FOMO, fear of missing out on whatever their peers are doing, versus how their life is going to be? No, I have got a different take on this. 21 साल में या अभी भी, इफ यू आस्क मी ना वन थिंग, है ना, लोग बोलते हैं कि गॉड एंड आई गिव यू व्हाट विश, तो मैं बोलूँगा मेरा फोन है ना भैया वो बजना बंद हो जाए। आई एम हैप्पीएस्ट व्हेन माय फोन इज नॉट रिंगिंग। यू आस्क एनी स्टूडेंट ऑफ माइन, ही विल टेल यू द सेम थिंग। जितने फोन आते हैं जो सामने बैठा होता है ना, पहले 3 सेकंड में अगर मैं कनेक्ट नहीं करता किसी से, जस्ट थ्रो इन द एयर, जिसके पास आ गया मैं बात कर लूँ, है ना। सी दुनिया भर के लाइफ इज बियॉन्ड दिस थिंग, है ना। आई बिलीव इन कनेक्टिंग टू द पीपल, नॉट टू द वाईफाई। ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझे कुछ बताओगे, अगर मैं महसूस कर सकता हूँ, मैं आपको कुछ समझा सकता हूँ, ठीक है, यू कैन लाफ टुगेदर, यू कैन प्ले टुगेदर। ग्राउंड पे बाहर निकलोगे तो 10 लोगों से, यू नो, आप हाथ भी किसी से मिलाते हो, किसी के कंधे पे हाथ रखते हो ना, टच हैज गॉट हीलिंग प्रॉपर्टीज। बच्चा है, जानवर है, हर आदमी महसूस करता है। प्रॉब्लम टुडे इज, आप एक बिल्डिंग में आमने सामने रहते हो, बट आप है ना सोशल कंडक्ट से लेकर के सारे काम है ना मोबाइल पे कर लेते हो। कंडोलेंस उस पर दे देते हो, रिप उस पर लिख देते हो। अरे यार, उस पर रिप लिख करके ऐसे इमोजी बना देना और कुछ साइन बनाना इज डिफरेंट थिंग। यू गो ऑन द ग्राउंड, यू सी है ना कि भैया 50 लोग हैं, सारी वाइट ड्रेस में, है ना, इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। ठीक है, आदमी को जब आप देखते हो कि आपके सामने रखा जा रहा है ना, एंड आग के हवाले कर रहे हैं वहाँ पे, यू सी पीपल ब्रेकिंग डाउन, यू नो, एंड यू रियलाइज कि दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ। अपने आप में बहुत बड़ी एजुकेशन है कि अच्छा, दिस इज हाउ यू गो, नोबडी इज कैरिंग बैक दैट टाइम ना, वेल्थ एंड एवरीथिंग। ठीक है, अच्छा खासा आदमी था, बट बिकॉज ऑफ द पुअर हैबिट्स एंड आई पास्ड अवे, पहले निकल गया। मोबाइल से बाहर निकलना चाहिए। कितनी लाइफ है, इतने से छोटे से, है ना, इंचेस का स्क्रीन है, यू थिंक दैट इज लाइफ? अरे कुदरत ने इतना अच्छा बना रखा है बाहर जाकर के, बाहर लोग छाता निकल के बारिश में निकलते हैं, मुझे तो उसमें भी ताज्जुब होता है। आप भी अगर बारिश हो रही है, अगर until unless you are holding some important document, sometimes go get wet outside, feel the rain। ठीक है, पानी नहीं है, वो लोग वैसे तरस रहे हैं, और जहाँ पानी आ रहा है वहाँ जनता छाता लेके चल रही है। सी, मैंने कुछ मिस नहीं किया, आई वाज द हैप्पीएस्ट, आई हैड माय ओन सोशल लाइफ विद माय पीयर्स। मेरे जो पीयर्स हैं, साथ में फौजी फोन है, उस पर बात हो जाती है। आप न्यूज़ उठा करके देखो कितने हैं न्यूज चैनल है, हल्ला ज्यादा लोग मचा रहे हैं, द वे दे प्रोजेक्ट सम न्यूज व्हिच इज अ नॉर्मल न्यूज, यू नो, बट द वे सो दैट यू कैन सेल इन द मार्केट ना, दे आर एज गुड एज सब्जी मंडी। सब्जी मंडी में भी आदमी ये करता है, आलू ले लो, टमाटर ले लो, एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस दे आर शॉटिंग, यू नो। न्यूज में क्या कर रहे हैं लोग, ये कर रहे हैं, कौन सा चैनल किससे ज्यादा चिल्ला सकता है। आप जितना चिल्लाओगे, जितना ज्यादा ढोल बजाओगे ना, कि मतलब न्यूज उतनी इंपॉर्टेंट है। ब्रेकिंग न्यूज, ये देखिए, टमाटर तक पे फोकस कर रहे हैं, उसके घर से टमाटर चोरी हो गया, दिस इज न्यूज, यू कॉल इट न्यूज। न्यूज ऐसी होनी चाहिए कि अगर कहीं भूकंप भी आ गया तो आदमी बोले कि भैया समथिंग वेरी सैड हैड हैपेंड, बट लेट्स स्टे यूनाइटेड टुगेदर एज दिस थिंग। मणिपुर में इतना कुछ चल रहा है, वेयर आर दे, हु इज गिविंग ओपिनियन? शिटी थिंग्स आर ऑल, शिट इज फ्लोटिंग ऑल अराउंड, यू नो। अब मोबाइल की बात कर रहे हो, लेट्स कम टू द बिगेस्ट स्क्रीन। बॉलीवुड है या जो भी वुड है, हाउ मेनी सोशल थीम देयर दिस थिंग। मार्केट में क्या चल रहा है, ओके, फौजी की चले एक मूवी, फौजी को भेज देते हैं, ओके फाइन। अच्छा, कारगिल हो गया, चलो कारगिल दिवस आ रहा है कि ये लॉन्च कर देते हैं, ओके। कोई गैलेंट्री अवार्ड विनर है, चलो उनको लॉन्च कर देते हैं। उनके पेरेंट्स के हाथ में मिलकर शूटिंग के टाइम पे, पब्लिसिटी के टाइम पे लोग जाके फोटो खिंचाते हैं। उसके बाद पूछा कभी उनसे, पूछो फोन करके कि बर्थडे कब है मेजर साहब का, उनको घंटा नहीं पता होगा किसी को। शोइंग, है ना, कंडोलेंसेज, है ना, फॉर योर ओन मीननेस, समथिंग डिफरेंट। कितने लोग हैं जिनको अवार्ड नहीं मिला, व्हाट दे आर डूइंग। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दुनिया भर का पैसा है, बट टैक्स बचाने के लिए 50 तरीके हैं, बट कितने लोग हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं?
गुजरात के अंदर एक है सोशल आर्मी, group of volunteer people, they are doing something good. I'm going for event there. They have raised 3 lakh rupees and 3 families are being presented. I'm so happy that I'm part of it. ठीक है, कुछ कर रहे हैं बट उसको कोई ढोल नहीं बजा रहा कहीं पे. करने वाले कर भी रहे हैं बट कोई प्रेशर मुझे तो नहीं फील होता कि मैंने कुछ मिस किया है. जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको भी बताता हूँ, यू आर मिसिंग ऑन टू लाइफ बिकॉज यू आर टू मच इनटू द स्क्रीन, यू नो. आंख आपकी पहले खराब हो जाएगी. How do you tackle with that issue? Because kids these days are too much into their devices. Okay. So when they come to you in that state, how do you tackle with that? What do you tell them? 2 तरह की हैं. पहला ये मैंने इंस्टीट्यूशन आई हैव सीन जैसे कि ना हम कन्फिस्टिकेट कर लेते हैं फोन एंड आई टेल देम कि भी आप सिर्फ फिक्स टाइम पे बात करोगे. नो, मैं उनको बताता हूँ कि वाइल आई एम वेरी पुअर विद द टेक्नोलॉजी बट डिफरेंस बिटवीन मी एंड यू इज आई नो एग्जैक्टली वेयर टू फिंगर दिस मशीन, यू नो. कंट्रोल आपके हाथ में है, ठीक है, बट आप गलत जगह आप उंगली लगाते हो, ठीक है. व्हाट यू आर नॉट सपोज टू सी वो आप पक्का देखते हो, जो चीज आपको देखनी चाहिए वो आप नहीं देखते हो, ठीक है. योर फ्रेंड लिस्ट हैज गॉट एन 800 पीपल इन द लिस्ट. नाम आपको 8 के भी नहीं पता. पेरेंट्स के नाम पूछता हूँ तो आपको 3 के भी नहीं पता, ठीक है. एंड व्हेन यू विजिटेड तो सर आई नेवर विजिटेड, वी आर जस्ट फ्रेंड ऑन द फोन. मैं ठीक है, मेरे पास आते हैं, मैं उनको 48 घंटे देता हूँ, मैं 48 आवर्स आई वांट यू टू रिमेंबर ईच एंड एवरीबॉडीज नेम. तो बार बार पूछो कि यार क्या नाम कहता है, भाई नाम बता दो यार जल्दी से, यार कहाँ के रहने वाले. सर पूछेंगे, एक आदमी नहीं बता पाएगा, सबको रगड़ देंगे. दिस इज हाउ आई ब्रिंग देम टुगेदर. फिर मैं हर रोज खड़ा करता हूँ किसी एक को, मैं यू वांट टू नो द स्टोरी, गेट अप, मैं चल तुझे बताता हूँ. लास्ट बैच वन ऑफ द गाय, बहुत इनोसेंट प्यारा सा बंदा है ना. ही सेड कि सर मुझे लगता है मैं बहुत डम हूँ एंड बहुत एलीट लोग यहाँ पे आए. मैं नो, मैं तो बहुत अच्छा बंदा है, यू नो. योर हार्ट इज एट द राइट प्लेस, बहुत सही जगह तरफ वेल एंड यू आर इनोसेंट ऑल्सो बट डोंट हैव दिस काइंड ऑफ लो फीलिंग अबाउट यू कि मुझे कुछ नहीं आता, आई एम डम्बो. नो, यू आर नॉट. मैं चल तो कुछ दिखाता हूँ. तो उसको क्लास में लेके आया, द एंटायर क्लास 100 पीपल वर सिटिंग देयर. आई ओपनड हिज लेसेस. मैंने कहा बांधना जरा लेसेस. बहुत ट्राई करी, यू कुड नॉट टाई लेसेस. पीपल वर वेरी इमोशनल. दे सेड कि तुम लोग बैरक में एक साथ रहते हो ना, आई कीप टेलिंग यू गेट इनटू ईच अदर. मैं कितने लोगों को पता है कि इसको लेसेस नहीं बांधने आते. इज 23 years. They said, sir, we were not aware. आज सुबह लेसेस किसने बांधे हैं? मामन तूने बांधे हैं? I said, yes sir, and he cried a lot. And people also got emotional. But anyway, nobody is trying to help you, I'll help you. I said, मैं भी बैठा तो मैं लेसेस बांधने लगा उसके एक साइड. मैंने कहा उसको ऐसे पकड़, इसको ऐसे कर, दोबारा ट्राई करते हैं. 2-3 attempts, he was able to tie. And everybody clapped for him. गले मेले लोग आके, बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं कोई, रॉकेट साइंस. लेसेस ही बांधे हैं ना सिर्फ एक, बट माहौल कुछ अलग था उस समय वहाँ पे. मैं तुम लोग जब तक ये करोगे मैं तुम्हें कोई नई चीज़ सिखाऊंगा कल. एवरी डे यू विल लर्न एंड हियर समथिंग न्यू. फिर मैं उसको बोला मैं लेक्चर दे एक बारी रात को खाने के बाद में, ऐसे बैठे बास्केटबॉल कोर्ट में. ही सेड सर दिया नहीं जाएगा मुझसे, मैं इंग्लिश में देना है. मतलब क्या बोलना है, मैं जो तेरे मन में आता है ना तो वो बोल. तो नहीं, यहाँ क्या देखा क्या सीखा. ही स्पोक फॉर अपना गुड अमाउंट ऑफ टाइम एंड एक एक वर्ड जो उसने बोला ना, इट मूव्ड एवरीवन. लॉट ऑफ पीपल वर क्राइंग इंक्लूडिंग राहुल, मी, एवरीवन. कहता है मैंने जो 23 साल में नहीं सीखा ना वो 23 सेकंड में सीखा है यहाँ आके. कहता है फिर मैंने अगले दिन सर के पास गया, मैं सर कुछ काम दो आज के लिए. कहता है सिर्फ 10 मिनट बाद मिलते हैं, दोपहर को मिलते हैं, अगले दिन मिलते हैं. फिर मुझे लगा 2-3 दिन में कि यार ये आदमी टरकाया जा रहा है मुझे. कहता है देन आई रियलाइज कि सर हमेशा बोलते हैं कि ना बी सिंपल, बट आई रियलाइज विद दिस मैन कि बीइंग सिंपल इज आल्सो नॉट दैट सिंपल एंड ही डोंट वांट मी टू बी डिपेंडेंट ऑन हिम. सो आई नीड टू लर्न माय पार्ट. सो अगले दिन से, बिकॉज है ना मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं जिम्मेदारी ना दी नहीं जाती, ली जाती है. तो अगले दिन वो आया, कहते सर टुडे आई लर्न हाउ टू टाई द नॉट. वाओ. देन ही सेड सर टुडे आई लर्न हाउ टू है ना अनफोल्ड एंड मेरे को कैसे अपने टाई लगाने का प्रॉब्लम सीख लिया. कहते यस सर. मैं मॉम को बता दिया. कहते नो सर आई विल गिव हर ए सरप्राइज. सरप्राइज ऑफ दिस काइंड. इतना छोटा सा है बट यू नो जब आप करते हुए सब चीज़ें और देखते हो ना, तो मुझे तो कुछ नहीं लगता कि सोशल मीडिया में, बट मैं जब अपने स्टूडेंट्स को देखता हूँ ना, वी गेट सो मच इन्वॉल्व इन द रियल लाइफ इश्यूज है ना. बाहर खेलना कूदना, बारिश आती है कीचड़ में हम कबड्डी खेल रहे होते हैं एंड दे रियलाइज कि सर फोन है ना सिर्फ हम एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो मैं उनको सिखाता हूँ. मैं देखो पहला कॉल सुबह उठा के पेरेंट्स को करना चाहिए और ऑल दोज पीपल हु आर इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ. डोंट वेट फॉर बर्थडे एंड समथिंग टू विश. एवरी डे यू टेल देम आई लव यू. मैं लाइफ में है ना कई बार चांस नहीं मिलता है. मैं देखा 3 ओकेजन पे, मैं तरस गया था 10 सेकंड के लिए कि 10 सेकंड एक बार बात हो जाए घर पे. आई जस्ट कैन टेल देम कि आई लव यू. उसके बाद मर गया तो कोई दिक्कत नहीं. बहुत कोशिश करी मैंने, बहुत कॉल करे बट नहीं उठाया किसी ने कॉल. उस दिन आई रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ 10 seconds दैट डे एंड आई कर्स गॉड लाइक एनीथिंग. एंड इतनी मैंने गालियां दी भगवान को, बट देन आई लर्न है ना कि ही इज द ओनली वन हु कैन एक्चुअली टेक शिट फ्रॉम एवरीवन. स्टिल है ना स्टे पॉजिटिव. आप ऊपर देख के दे सकते हो गाली, इट विल नेवर कम बैक टू यू. बाकी सामने तो किसी को थोड़ा सा कह दो बुरा मान जाता है. तो मैं उनको सिखाता हूँ एंड
व्हेन आई शेयर सम स्टोरीज, आई टेल देम रियल लाइफ एक्सपीरियंस, दे क्राई। बट अगले दिन से होता है पक्का, सर हमने बात करी है। कहते पेरेंट्स भी पूछते हैं, मैं क्या फीडबैक है, कैसे मेरे पापा तो पूछ रहे हैं कि तो ठीक है ना सब पक्का, यार तू आई लव यू बोल रहे तो पक्का ठीक है। मैं व्हाई इट इज अ टैबू यार, तो रोज बात करते हैं वो लोग, है ना। एंड दूसरा मैं बताता हूँ, टू क्रिएट मेमोरीज, तो फोटो खींचने के लिए, गाने सुनने के लिए और समथिंग फॉर द स्टडी पर्पज दे यूज। तो फोन पूछते, बोलो मेरा फोन देखा है किसी ने, कहाँ पड़ा है, चार्ज है नहीं है, नॉट अवेयर। सर, व्हाट डू यू थिंक आर the challenges that the youth today is facing that wants to take up army as a career option? नहीं, आर्मी करियर ऑप्शन लेना तो क्या चैलेंजेस हैं उनके लिए? बहुत है, बट सेल्फ क्रिएटेड है। 99% सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम। भाई आर्मी में जा रहे हो, ऐसा चैलेंजिंग करियर है ना, या तो आप मत जाओ उस प्रोफेशन के लिए। आर्मी में अगर आपको कोई टास्क दिया है तो नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू दिस थिंग ना, आपको सिर्फ बताया जाएगा आई वांट दिस, ये चाहिए। यू आर जस्ट गिवन अ टास्क, आपके पास मैन पावर है नहीं है, नॉट माई प्रॉब्लम। टाइम है नहीं है, योर बंदोबस्त, ठीक है। रिसोर्सेज हैं नहीं है, यू हैव टू मैनेज, यू बेग, यू बोरो, यू स्टील। आई जस्ट वांट इट, आई वांट इट, एंड देन यू डू द रिवर्स इंजीनियरिंग कि इतने बजे तक ये चीज चाहिए, वहां से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, कितनी ऑब्स्टेकल आएंगे, नेगोशिएशन में कितना टाइम लगेगा। रिसोर्सेज नहीं है तो व्हाट आर द अल्टरनेटिव मेथड्स, अगर ये नहीं होगा तो क्या करेंगे। 10 आदमी चाहिए, 2 आदमी है तो कैसे होगा, बट काम होगा, ठीक है। देयर इज ऑलवेज ए डिलीवरेबल टारगेट, ये चाहिए। हर छोटी चीज में प्रॉब्लम दिखाई देती है। हर एक आदमी आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, डिफेंस एस्पिरेंट्स बहुत सारे हैं, बट काम कोई नहीं करना चाहता। बहुत सारे लोग हैं। Sir, how much of it is a physical challenge, a mental challenge, an emotional challenge for being a part of Indian Army? No, there's no challenge. Luxury ये challenge की तरह है। नहीं, seriously tell me, आप physically fit हो रहे हो, ठीक है। अब somebody ask me, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि I'm just 21 years. जिस दिन फौज में यूनिफॉर्म में गए थे उस दिन एज रुक गई थी। 21 years with 26 years of 25 years of experience. आज तक मुझे याद नहीं आता कि कभी मैं किसी तरह की दवाई ली हो, किसी डॉक्टर के दर्शन किए, मैंने नॉट रिक्वायर्ड। फौज आपको फिट रखती है, आप अपना रूटीन अच्छे से फॉलो कर लीजिए, सुबह टाइम पे उठिए, डू एक्सरसाइज। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे आप लोग इतने सारे मुक्के मार के देखो, 20-30, फिर एक मैं मारूंगा। फौज प्रिपेयर्स यू वेल, फिजिकली आपको टफ बनाती है। 21 साल में आप ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे ना आपको किसी के दर्शन नहीं हो रहे, ना पशु पक्षी मिल रहे हैं, ना जानवर है, ना इंसान है। यू सी एवरीथिंग वाइट वाइट वाइट, देयर इज नो एंटरटेनमेंट, देयर इज नो फ्रेश फूड, नथिंग। आप टिन राशन में रह रहे हो, यू स्टिल हैप्पी, ठीक है। कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं, सिर्फ कैरम बोर्ड थोड़ा खेल करके आप फिर भी खुश हो, ठीक है। थोड़ा पेट्रोलिंग करके आए, जंगलों में इधर उधर घूमे, आप यू स्टिल हैप्पी। घर पे बात नहीं हो रही है बट स्टिल हैप्पी। मेंटली आप टफ हो रहे हो, यू आर हैप्पी विद मिनिमल थिंग्स इन लाइफ। चैलेंज कुछ नहीं है फौज के अंदर, और चैलेंजेस हैं भी तो वी टेक इट वेरी पॉजिटिवली। फौज वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपको चैलेंजेस नहीं चाहिए थे, व्हाई यू नॉट गॉन फॉर IT सेक्टर, आप होटल मैनेजमेंट में आ जाते। गो फॉर लग्जरी, नोबडी फोर्स्ड यू। So if you are open to challenges, then only come to the organization. Otherwise, organization का भी नुकसान मत कराइए और अपने भी सपने मत मारिए, you know? वो challenges हैं आर्मी, बहुत अच्छी लाइफ है, physical, mental, social. But how does one prepare themselves mentally? Mental fitness जिसे कहते हैं, वो कैसे की जाए? Mental fitness के लिए यही है, पहली चीज तो ना, जैसे मैं कहता हूँ, crying is not an option. Do and do, only 2 options. Dying is not an option. हर चीज में रोना है। एग्जाम कम आ गए, रोना शुरू, ठीक है। ब्रेकअप हो गया, रोना शुरू। हर चीज के अंदर मतलब शिकायतें हैं, कंप्लेंट्स हैं। अरे अगर नहीं आपसे हैंडल हो रही रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, छोड़ दो यार, ठीक है। स्टे सिंगल, है ना। फौज में तो ही बोलते हैं यू आर मैरिड, बोलो नो सर आई एम स्टिल हैप्पी, दैट मींस यू आर सिंगल। दिस इज हाउ यू टेल इन फौज। वंस यू गेट मैरिड, आई एम हैप्पियर। बट यू ऑलवेज लुक टू द पॉजिटिव साइड। हर चीज में प्रॉब्लम ढूंढने की बजाय ना, अगर खुश रहने की वजह ढूंढो तो ज्यादा अच्छा लाइफ है ना। सो इट इज एज सिंपल एज दैट। जैसी चीजें हैं ग्राउंड पे, उसको वैसे ही लेना चाहिए। पर लोग हर चीज़ ना रील में देखना चाहते हैं, हर चीज़ को ना कंपैरिजन में लेके आते हैं, पीयर प्रेशर में। पीयर प्रेशर बहुत है। आई सीन एक केस जहाँ पे एक बंदे ने ये भी बोल दिया किसी को कि भाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दे, स्टे इन द सेम सोसाइटी, भाई मेरा तो हो गया यार, आई एम गोइंग टू द गुड कॉलेज, तो तूने क्या सोचा है कौन सी फ्लोर से कूदेगा। इट हैड टेकन सच ए टॉल, ही गॉट रेडी किया, अब तो मैं कर लूंगा नुकसान। स्टूपिड थिंग यू थिंकिंग। इतना लोड लेने की क्या जरूरत है? व्हाई डोंट यू टेक इट चैलेंज कि गुड रगड़ दूंगा मैं इस चीज़ को, अगली बार 3 से 6 रैंक ला के दिखाऊंगा। कितना मुश्किल हो सकता है? आप थोड़ी और पढ़ाई करो, जोर मारो अपने लिए। बट मेंटल है ना, इमोशनल थ्रेशोल्ड बहुत कमजोर है लोगों का। नो सुनने की आदत नहीं है। दैट इज वन बिग रीजन आई आइडेंटिफाइड। अच्छा कोई बताता भी नहीं है, बताता है तो लोग मानते नहीं है। पेरेंट्स किसी चीज के लिए मना करते हैं तो बच्चों को लगता है कि हमारे साथ बहुत अन्याय हो गया। अगर कोई कॉम्पिटिटिव उसमें है, वो भी नो बोल देता है तो उसमें भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हर जगह यस चाहिए। रिजेक्शन को कैसे हैंडल करें? एक्सेप्ट इट ना।
भाई अगर मान लो फॉर एग्जांपल एक रिलेशनशिप ही है, 2 लोग हैं, है ना, सब मैंने प्रपोज किया था, उसने मना कर दिया, लोड ले रहे हो, वो भाई जहाँ आपकी चॉइस मैटर करती है, इट इज द चॉइस ऑफ द अदर पर्सन ऑल्सो, हैव रिस्पेक्ट फॉर दिस, देन यू आर नॉट इन लव, इफ यू आर इन लव विद समवन एटलीस्ट रिस्पेक्ट यू कि ठीक है, आई जस्ट वांटेड टू से माय थिंग एंड इवन नो इज अ गुड आंसर, एटलीस्ट मुझे क्लैरिटी मिल गई कि ना यू हैव योर ओन चॉइस, बट थैंक यू वेरी मच फॉर एटलीस्ट लिसनिंग टू मी। अप्रोच तो वो भी हो सकती है, लेकिन नहीं, उसमें भी जनता सुसाइड करने चल देती है, गजब है यार, जबरदस्ती मतलब आप प्यार करोगे। एग्जाम में रिजेक्ट हो गया, उसमें भी जनता से सुसाइड करूंगा, मैं लाइफ में कामयाब नहीं हो पा रहा, तो एक बारी में तो कुछ भी नहीं होता। आइंस्टाइन है, उसको बतेरा टाइम लग गया था काम करने में। सो इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए नो लाइफ में फॉर एनीथिंग। नो सुनने की आदत होनी चाहिए। मैं बहुत अच्छे देता हूँ रियलिटी चेक। अभी एक अनुराग है, इफ यू सी माई इंस्टा ना, तो उसके अंदर अनुराग मिलेगा वहाँ पे। अनुराग ने एक दिन हम लोग फंक्शन था, कोई डांस डूंस चल रहा था, तो वी वर गेटिंग लेट एंड दे सेड कि सर अनुराग बोल रहा है कि और 2 गाने लगाते हैं। मैं शट इट डाउन, नेक्स्ट डे टुमारो, नाउ क्लोज फॉर द डे। खाना खाने गए तो बहुत गुस्से में था वहाँ पे, ऐसे ऐसे करके खड़ा हुआ था एंड ही इज ए वेरी स्पेशली ब्लेस्ड चाइल्ड। तो लोगों ने बोला सर ना खाना नहीं खा रहा, गुस्से में। मैं ओके, आई वाज आल्सो एंग्री, मैं गया गुस्से में। व्हाट डू यू थिंक, गुस्सा सिर्फ तेरे को ही आता है, यू हैव गुड रीजन टू अपना एक्सप्लेन कि गुस्सा क्यों आ रहा है। तो कुछ बोला नहीं। मैं लिसन, मैं कम यार, हाथ पकड़ के लेके गया मैं उसको, मैं लुक एट हिम, मैं सर पे बाल कैसे हैं, मैं सफ़ेद बाल हैं, मैं उम्र कितनी है उनकी, मैं 60 साल का आदमी है वो इसलिए बैठा हुआ है 12 बजे सो दैट ही कैन फीड यू। सुबह 4 बजे खड़े होकर दोबारा खाना बनाना, इट्स ओनली चॉइसेस है ना लाइफ में, तुम्हारा ही चलेगा सब कुछ। आई वाज गोइंग टू थिंक अबाउट दिस ओल्ड मैन, वो कब सोएगा, कब उठेगा। आप तो गाने गा के डांस करके सो जाओगे। 2 गाने नहीं सुनाए भाई साहब, आप नाराज हो रहे हैं। बट डोंट एक्सपेक्ट है ना दिस थिंग। तो लोगों बोलो सर आप ब्लेस्ड बच्चा, आपने उसको भी डांट दिया। मैं बिल्कुल डांट दिया, यू टॉकिंग द टफ लव ना, दिस इज टफ लव। मैंने कहा सुन, तेरे को आदत नहीं है नो सुनने की। मैं डिफरेंस बिटवीन अदर्स पर्सपेक्टिव एंड माई पर्सपेक्टिव इज everybody is treating you like a special blessed child. I treat you normal. That is the difference. तेरे को रियलाइज नहीं हो रहा है, आई एम ट्रीटिंग यू लाइक नॉर्मल। तुझे आदत होनी चाहिए नो सुनने की, ठीक है। आज मुझसे सुन रहा है एंड आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू। लोग बिना एक्सप्लेन करे तेरे को नो बोलेंगे लाइफ में, एंड यू विल फील हर्ट। आई डोंट वांट यू टू फील हर्ट हियर आफ्टर। आज सुन लिया और आगे भी सुनेगा, गलती करी मुक्का भी लगेगा, ओके। रात को 2:30 बजे उसने मैसेज लिखा है, पोस्ट डाली एक कि ना कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, नो सुनने की आदत होनी चाहिए। एंड यू एक्सप्लेन, एंड 2:30 बजे वो पोस्ट लिखकर फिर उसने पोस्ट किया एंड उसको यार मैं गुड, ही रिसीव्ड माय मैसेज वेल। दिल्ली में उसको लोगों ने एडमिशन नहीं दिया, एंड दे कॉल स्कूल गुड स्कूल, नोबडी वाज रेडी टू गिव हिम एडमिशन देयर, ठीक है। व्हाई कि सर बाकी बच्चों पे फर्क पड़ेगा, ये है। तो व्हाई यू कॉल इट ए स्कूल, आप एक बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे, यू कॉल योरसेल्फ ब्लडी स्कूल। आई टोल्ड राघव एंड निशान, मैं जब आते हो उसको घर से उठा करके लेकर के आना, ही डिजर्व हिज ओन शेयर ऑफ हैप्पीनेस, यू नो, यू नीड टू स्टे विद मी। उसको घर से लेकर के आया, नॉट इवन स्पोकन टू हिज पेरेंट्स, जस्ट पिक हिम अप। वो लेकर के आया, बाकियों की तरह उसने फॉर्मल पहने, टाई पहने, है ना, पगड़ी भी बनाई एक दिन हरकीरत ने, सरदार जी ने। इट्स पार्ट ऑफ माई रिचुअल। एंड लोगों के साथ में खाना, सुबह सबसे पहले उठ करके आता था, 14 किलोमीटर दौड़ के आता है, बिल्कुल हिलते हिलते सारा कुछ। व्हाट अ स्पिरिटेड गाय। मैं सेड वन एग्जाम्पल फॉर यू। उसको इतनी दिक्कत है खाना खाने के लिए भी, इतना हेल्थ है, बट अगर वो आ सकता है 14 किलोमीटर दौड़ सकता है ना, डोंट टेल मी सर आई एम लेडी और आई एम लीडा। मैं ट्रेनिंग के टाइम पे यू जस्ट कैरेट, लेडी लीडा में कोई फर्क नहीं है, मैं रगड़ दूंगा तुम्हारे को। मैं इफ एनीबडी कंप्लेन्स, इफ अनुराग कैन डू इट, चुपचाप जितना बता दो उतना काम करोगे। एंड पीपल लुक्ड एट हिम कि यार इफ ही इज नॉट कंप्लेनिंग वी कैन नॉट कंप्लेन। बट मैं उसको लेकर के आया, एंड देन उसने हिलते हुए हाथों से मुझे चिट्ठी लिखी एंड लिख करके दी। आई कंसिडर अ ग्रेट एसेट, है ना, सॉफ्टवेयर फॉर मी, कि उस बच्चे ने चिट्ठी लिखने की कोशिश करी एंड ही रोट टू मी कैसे आई ऑलवेज वांटेड टू गो टू आर्मी। एंड क्लास में बोलने में भी दिक्कत है, उसको रुक रुक करके बोलता है, बट उसने बताया चिट्ठी में लिख के कि सर मैं आर्मी हमेशा ज्वाइन करना चाहता था, बट बिकॉज ऑफ माई मेडिकल कंडीशन आई नो कि आई कैन नॉट ज्वाइन स्पेशल फोर्सेस, बट आई ऑलवेज वांटेड टू बी। दौड़ता है, स्विमिंग करता है, That's why he came to take the experience of the army at your he had never contacted me. I picked him up from his house. I told you, I choose my students. Out of 1,000, I sometimes take 18, sometimes 20, sometimes 30, now 100. So I picked him up from the thing. उसने लिखा सर फौजी बनना चाहता स्पेशल फोर्सेस में, बट जा नहीं पाया, है ना, मेडिकल की वजह से नहीं जा पाऊंगा। बट कहता यहाँ पे मैंने बैरक में लोग कैसे रहते हैं वो देखा, टाई बांधी, फॉर्मल में रह करके देखा कि हाउ ऑफिसर शुड कैरी हिमसेल्फ, है ना। एंड मैंने पूरी क्लासेस अटेंड करी एंड मेरे को एक आर्मी वाली पूरी फीलिंग आई, सर आई लिव दैट लाइफ। सो उसकी छोटी सी खुशी है, बट वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है, नो। अदरवाइज लोगों के पास पैसा बहुत है, बड़ी बिल्डिंग है, स्कूल है, बट दे कांट इवन टेक केयर ऑफ वन बॉय, वन यंग माइंड, है ना। क्या फायदा फिर स्कूल का। डोंट कॉल योरसेल्फ एजुकेशनिस्ट एंड बड़ी, they might be having very money and rich but they're very poor in their attitude.
वैसे तो मैं बहुत अमीर समझता हूँ अपने आप को. सो दैट इज टफ लव. मैं उसको भी डांटा है. मैंने किसी लड़की को भी गिवन यू एग्जाम्पल. मैंने कहा यू क्राई एंड यू सी अनदर पंच इज गोइंग टू कम ऑन योर फेस. क्राई चॉप जोर से करके. भाई यू क्राई चुप होकर के बताओ कि सर लाइफ में बहुत दिक्कत है एंड सर हैंडल नहीं हो रहा, बहुत प्रेशर है सर, कई बार लगता है सर की नस फट जाएगी. वैसे बोल के दिखाओ, जोर से बोलो सर लगता है नस फट जाएगी, ये वो करके. मैं जितने कॉन्फिडेंस से बता रहा है मुझे तो कोई लग नहीं रहा प्रॉब्लम. कहते सर खुद ही तो बोल रहे, जोर से बोलो. जब बता रहे हो तो कह रहे प्रॉब्लम नहीं है. मैं देखो रो के बताएगी ना तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी. बिना रोए बताओ मुझे सर लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, कैन आई शेयर विद यू. सर पॉइंट नंबर 1 2 3 मैं 100 बता, मैं सुनूंगा. बट रोना एक्सेप्टेबल नहीं है मेरे को. रो करके नहीं बताओ, मैं सुनूंगा ही नहीं तुम्हारी बात. तो मैं किसी को रोने नहीं देता. एंड आई एम बीइंग वेरी टफ बट नॉट ऑलवेज. जहाँ जरूरत है तभी. आई नो वेरी थिन लाइन है बिटवीन गिविंग ए पैट ऑन द शोल्डर एंड गिविंग ए बूट ऑन द बैक. तो जहाँ जरूरत होती है उतना ही काम करता हूँ, है ना. I am getting so carried away with these stories that you are sharing. कभी देखना एक बार 21 दिन. I'm telling you, you will have a lifelong experience. Sir, what would be your tips for the youth again? Because आप youth के साथ इतना काम करते हो, इसलिए मैं बार-बार youth के लिए सवाल पूछ रही हूँ आपसे. What are your tips for the youth to handle and manage their anxiety? Because that is also one of the prevalent problems that is coming these days. You know, everything is sort of bringing that uneasiness in you, and that is then manifesting into bigger diseases also. Yes. So how does one handle that and manage that? See, anxiety के जो कारण मुझे समझ में आते हैं dealing with the youngsters ना. पहला important reason ये है कि anxiety when you don't do your work on time. आप अपना काम नहीं करेंगे, anxiety होगी. For example, आपका एग्जाम आ रहा है, आपने एग्जाम की तैयारी टाइम पे नहीं करी आपने. बड़ी जायज़ सी बात है, आपको एंग्जाइटी होगी. ठीक है, क्यों नहीं होगी? आपने टाइम पे किया नहीं. अगर आपने किया होता, रिवीजन करी होती, यू वुड हैव एंड हैड अ गुड स्लीप एंड सुबह अपना एग्जाम भी अच्छा दे के आते. ठीक है. अब फॉर दैट मैटर पार्टी भी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, सारी चीज़ें लास्ट मिनट में रखिए. लास्ट मिनट में कॉल कर दो, लास्ट मिनट में ना केटरिंग भी बुला लो. नहीं हो पाएगा. अपनी चीज़ों को थोड़ा स्पेस आउट करना चाहिए. यू नो, काम टाइम पे नहीं करना. दैट इज वन. सेकेंड थिंग, मोर थिंकिंग एंड लेस डूइंग. सिंपल लिविंग एंड, है ना, हाई थिंकिंग. यहाँ है कि भैया लग्जरियस लिविंग एंड नो थिंकिंग. चाहिए सब कुछ लाइफ में, लेकिन काम नहीं करना. बाहर से कोई नहीं आएगा, अपना काम खुद करना पड़ेगा. मेरे को कई बार लोग पूछते हैं सर मुझे लगा आपने फ़ोन उठा लिया, आपका कोई मैनेजर उठाएगा. मैं कोई नहीं मैनेजर, मैं ही हूँ भैया. अपनी गाड़ी भी खुद साफ़ करता हूँ, झाड़ू पोछा भी खुद ही लगाता हूँ, है ना. इंस्ट्रक्टर भी खुद ही हूँ, क्लासेस भी खुद ही लेता हूँ, सारे काम करता हूँ. डैम प्राउड ऑफ माई सेल्फ. अपने काम खुद करता हूँ. कौन सा मेरा स्टूडेंट है जो बोले नहीं करूँगा? बिल्कुल करोगे. अपनी प्लेट भी धोगे, सारे काम करोगे. घर पर कोई काम नहीं करते हैं. ठीक है. मैं घर पे कौन उठाता है कपड़े? वो करते हैं. धोता कौन है? सिस्टर धोती है. प्रेस कौन करता है? मम्मी करती है. तो मैं जिले इलाही आप हाथ गुलाब में लेके घूमते रहते हो और कुछ और भी करते हो गुलाब हाथ में लेकर के. मैं ज्वाइन कर रही हूँ आपने स्पेशल फोर्सेस, और बेसिक मंडेन काम भी आप अपना नहीं करते. मैं व्हाट मेक्स यू थिंक यू विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ? अपना काम खुद नहीं करना, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करना, हवा में ज़्यादा रहना. यू नो, हो जाएगा, देख लेंगे, मुझे लगता है, मैं करना चाहता हूँ. करना चाहता हूँ में जोर नहीं लगता, बट करना है उसमें जोर लगता है. व्हेन यू डू थिंग्स ऑन ग्राउंड, यू नो. सोच में ख्वाब तो ताजमहल आप कभी भी खड़ा कर दो, नो एफर्ट्स. अपना काम नहीं करना है ना. दीज आर द मेन थिंग्स. एंग्जाइटी होनी नहीं चाहिए. दूसरा एक और चीज़ है ना, नॉट एक्सप्रेसिव. मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे बहुत एक्सप्रेसिव है. कमेंट भी देना होगा तो नहीं सोचेंगे. ठीक है, बट जब काम की बात है ना तो आप एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपने आप को. पेरेंट्स से भी आप नहीं बताते हो. प्रॉब्लम है, अपनी दोस्त से भी आप ढंग से बात नहीं करते हो. ठीक है. फ्रस्ट्रेशन या किसी तरह का कोई भी इशू है ना, अपने अंदर रखते हैं. वो बहुत बड़ा इशू है एंग्जाइटी के लिए. यू नीड एन आउटलेट. बट प्रॉब्लम वही है एट द एंड ऑफ द डे ना, लिसनिंग जो मैं बता रहा हूँ, ज़्यादातर लोग सुनते नहीं है. एडवाइस सारे देते हैं. But how much do you think is the role of parents in this kind of upbringing? Big role. I have seen examples. कई पेरेंट्स को लगता है कि हमने पैसे खर्च कर दिए, एडमिशन अच्छी जगह करा दिया, जॉब इज ओवर. बहुत एग्जाम्पल देखे हैं. कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे पेरेंट्स के आपस में अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं. हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, बात समझ में आती है, बट उसकी वजह से आपके बच्चे की हेल्थ और उसका वो खराब हो रहा है. दैट इज समथिंग अनपार्डनेबल. और बहुत एग्जाम्पल्स देखे मैंने. वो कहते हैं सर घर पे ना ऐसा चल रहा है, या फिर कोई कहता है सर मेरे पेरेंट्स की मेरे फादर की हैबिट अच्छी नहीं है, माई मदर इज़ वेरी दिस थिंग. कोई कहता है सर फिजिकल अब्यूज़ बहुत ज़्यादा है, वो मेरे फादर मारते हैं बहुत ज़्यादा, है ना. इज़ टोटली इनटू ड्रिंकिंग स्टेट एंड घर में कुछ हिसाब किताब नहीं बैठ रहा है. तो मैं उनको समझाता हूँ मैं ऐसी कैसे करना है. कोई ये बताता है कि सर मैं फादर को बता के जब तक वापस आ रहा हूँ मम्मी को कुछ हो गया तो देख लेना. सो इट इज़ वेरी पेनफुल. भाई माँ बाप की जिम्मेदारी है. भाई अगर आपने किसी को पैदा किया, आप लेकर के आए हो, इट इज़ योर ओनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव अ गुड लाइफ टू दैट चाइल्ड, यू नो. और वो फिर देखता है दूसरे को कि यार इसके घर में तो सब बहुत अच्छा है, मेरे साथ बहुत बुरा है.
वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है उसमें। आई डोंट ब्लेम चिल्ड्रन, है ना, बहुत एग्जाम्पल जानता हूँ मैं। बट फिर मैं उनको ये बताता हूँ, कुछ तो इस हद तक देखे हैं जहाँ पे ना दे हैव फिक्स्ड इन देयर माइंड, और मुझे उस चीज़ का एहसास रहता है। मैं पूछता हूँ, मैं व्हाट आर प्लान्स अबाउट मैरिज? सर आई डोंट वांट टू गेट मैरिड। मैं रीड व्हाट आई हैव रिटन। बोला सर इट इज रिटन कि आई डोंट वांट टू गेट मैरिड। मैं लिखा है ना पहले की तरह आंसर। मैं अभी रीजन भी अगले पेज पे लिखा है, फर्स्ट यू टेल मी एंड आई रीड माई आंसर व्हाट आई हैव रिटन फॉर यू। क्या सर, मैंने देखा अपने घर पे, मैं सी व्हाट इज रिटन, इट इज बेस्ड ऑन माई आई हैव नॉट सीन अ गुड लाइफ बिटवीन माई पेरेंट्स। इतने फिक्सेटेड ओपिनियन है कॉलेज वालों के कि भाई शादी नहीं करूँगी ज़िंदगी में, शादी करने के बाद में मेरे फादर और मदर जैसे रहते, ऐसा होता है। सो आई मेक देम अंडरस्टैंड। मैं सी देयर आर हैप्पी कपल्स आल्सो, यू नो, ऐसा नहीं कि सारी दुनिया में ही है ना, हर जगह रायता फैला हुआ है। मेरे देयर गुड एग्जाम्पल्स आल्सो, आई कैन शो यू। मैं आप अपने घर में चले जाओ एक जनरेशन बैक, कम पढ़े लिखे लोग थे बट सोशल कंडक्ट बहुत तगड़ा था उनका, है ना, अपनी फैमिली को बांध के रखते थे। मैं आजकल 8 साल आप लोग रिलेशनशिप में रहते हो, 3 महीने में फिर डिवोर्स के लिए खड़े हो जाते हो। दिस इज योर, है ना, इंटेलेक्चुअल लेवल टुडे। प्रॉब्लम है। मैं ऐसा नहीं है। मैं व्हाई डोंट यू थिंक अदर वे अराउंड कि भी मैं शादी करूंगी या करूंगा, लेकिन मैं अच्छा एग्जाम्पल सेट करूंगी। माई फादर कुड नॉट बिकम ए गुड हस्बैंड, आई विल बिकम ए गुड हस्बैंड। ठीक है, ही इज नॉट अ गुड फादर बट आई विल बी डैम गुड फादर। मैं ऐसा भी तो सोच सकता ना। एंड तू सोच ही नहीं करनी, बेशक मत करो शादी, बट कम से कम मैं ना ओपिनियन लेके, इन्फ्लुएंसेस लेके, जब पहले से टेम्पलेट सेट कर दी ना ऐसा करूंगा लाइफ में, तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, ना इधर का रहेगा ना उधर का। एटलीस्ट इन सम स्टेज ऑफ लाइफ यू ऑलवेज रिक्वायर सम पर्सन इन योर लाइफ टू शेयर समथिंग। कोई होना चाहिए जिसके पास में आप शेयर कर सको खुशी, है ना, रो भी सको। नहीं तो क्या, पैसे जितने कमा लो, कुछ शेयर करने के लिए क्या करोगे? Do you have that person in your life? Oh yes, my girl. I shown you the photograph. Yeah, Priya's photograph. Yeah, Priya's photograph. Yeah. उसका नाम ही my girl के नाम से सेव है। अच्छा। And then उसके बाद में my son is there. How many years have you been married for? 21. And then my parents are there. Priya's parents are there. प्रिया के भाई बहन है। My own brother Sanjeev is there. Then उसके बाद my mom family, मेरे 10 बैचेज में जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, और बहुत लोग ऐसे इधर से अब्रॉड जिनको मैं मिला नहीं हूँ कभी भी, वो रेगुलर फ़ोन पे टच होते हैं। कोई ऐसी हैं लेडी जिनके 2 बच्चे हैं, बोथ आर स्पेशली ब्लेस्ड, एंड शी सेड आई एम टू डिप्रेस्ड, देयर इज अ चेंज इन बिहेवियर ऑफ पीपल, लाइफ इज समटाइम वेरी डिफिकल्ट। मैंने कहा आपने मुझे कॉल क्यों किया है? ही सेज आई डोंट नो बट आई फील कनेक्टेड टू यू। मैंने कहा ओके मैम, मैं आपको एक कारण बताता हूँ, ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, बट आफ्टर चेकिंग ऑन दिस थिंग, यू नो व्हाई यू हैव बीन, आपको लगता होगा कई बार लाइफ में कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों है, व्हाई माय बोथ किड्स, दैट इज ओनली बिकॉज ना गॉड ही नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर एवरीवन, यू नो। एंड बहुत परफेक्ट प्लानिंग ऊपर वाले की। मैं इतनी बड़ी दुनिया में उसे मालूम है कि शी इज वन लेडी हु कैन बी इंटरेस्टेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इन बच्चों के लिए ना बहुत अच्छा कर सकते हो, बाकी वो नहीं है, दे कांट टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी और फिट, है ना, ही फील सो एटलीस्ट। तो उस भरोसे मैंने कि नोबडी हैड एवर टोल्ड मी कि मैं यू आर द बेस्ट मदर, है ना, बाकी नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता, बट आप कर लोगे, आई एम 100% श्योर। तो कि मैं दिस इज व्हाट यू कैन डू एट पर्सनल फ्रंट, प्रोफेशनल फ्रंट। तो इसके थोड़ा सा मुझे पॉजिटिव लगने लगा है। बहुत कुछ है। You have seen a lot in life. You have seen a lot when you were in the forces also. Are there things that haunt you that you have seen? No. जैसा combat field It only gives नहीं। फौज में किसी लिए जाता, आप किसी से पूछ रहे हो, अगर एक्शन नहीं देखा फौज में, फिर आपने क्या देखा? You're not gone for the parties, है ना, कि we'll do party. फ्री में कुछ भी नहीं होता पार्टी पे। See, the best of the bonhomie and camaraderie come when you are out of your comfort zone. So I am very happy. There is nothing which haunts me. Nothing. ना तो कोई काम ऐसा रह गया जो बीच में छोड़ दिया हो, unfinished. Every task has been finished impeccably. बिल्कुल क्लीन, साफ किया है जो काम था हाथ में। तो मुझे तो कोई चीज़ ऐसी याद नहीं आती। It is only the good memory that brings smile on my face. So there is no growth in comfort zone, that everybody knows. Yes. Yet we are caged in our comfort zones to an extent कि हमें जो भी हम सोचते हैं वो कर नहीं पाते हैं। तो how does one come out of this comfort zone? How does one crawl out of this comfort zone? पहला तरीका तो ये है ना, रिपोर्ट टू माय प्लेस, मेरे पास आ जाओ, मैं निकाल दूंगा कंफर्ट जोन से। पहले दिन बताता हूँ मैं सभी स्टूडेंट को, मैं जरूर जो भी आपकी सारी पूरी करूँगा, शौक पूरा नहीं करूँगा। पेरेंट्स को भी बोल देता हूँ मैं मुँह पे, मैं जरूर सारी पूरी करूँगा, शौक कोई पूरा नहीं करूँगा। यू आर हियर टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको 4 बजे उठने की आदत नहीं है, 4:30 मैं उठाऊंगा, ठीक है। आप कोई काम नहीं करना चाहते, 100% कहलाऊंगा। खाने के अंदर देखा ट्रे में निकाल के प्याज अलग रखे हैं, पराठे उसमें, व्हाट इज दिस? सर मुझे प्याज पसंद नहीं है। मैं डिड आई आस्क यू तुम्हें पसंद है नहीं पसंद है? मैं फौज में जाना है ना, तो फौज में कोई वहाँ वो थोड़ी बैठी आपकी वाइफ कि बना के डार्लिंग पराठे में क्या खाओगे, चुपचाप खा जाए। और मैं प्याज काट के लेके आना, मैं भी सारे प्याज खाएगा। क्या सर हो नहीं पाएगा, वोमिटिंग आ जाएगी। मैं कर देना, वोमिटिंग रोलिंग कराऊंगा, यू फिनिश इट। अगले दिन से लोग बोलते सर ये खा नहीं रहा, सर इसको भिंडी पसंद नहीं है। मैंने कहा अच्छा
कहता है मत बोलो सर को, तो सब लोग ढूंढ के सर इसको ये पसंद नहीं है, तो सारे कहते हैं यार मत बोलो सर को। कंफर्ट जोन से आना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बट देखो इट स्टार्ट विद अर्ली डे। आप सुबह उठते हैं, सुबह अगर आप टाइम पे शास्त्र के हिसाब से देखो कैसे, वो कहते हैं कि सूरज बाहर निकलता है उससे पहले उठ जाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त, ठीक है। अगर आप नहीं उठ सकते हैं टाइम पे तो यू आर ऑलरेडी है ना लेट, कंपटीशन वहाँ शुरू हो जाता है, पीपल आर ऑलरेडी है ना अहेड ऑफ यू। आप उठने के बाद में अपने शरीर पे काम नहीं कर सकते, आप टाइम पे नहाना धोना, अपनी बेसिक चीज़ें, अपना बेड ठीक कर देना, वो नहीं कर पा रहे हो। बट मुझे IPS बनना है, मुझे स्पेशल फोर्सेज में जाना है। अरे यार लुक एट योरसेल्फ, रूम इज बड़ी इन मेस स्टेट है ना, आप यू आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, किताबें आपकी इधर उधर पड़ी हैं, बट ज़्यादा किताबें इकट्ठे करके लग रहा है मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ। नो, यू आर नॉट डूइंग इट। सो इफ यू आर नॉट सिंसियर टू योरसेल्फ तो आप क्या करोगे लाइफ में? बाकी हर जगह चलता है, आप रिलेशनशिप में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, फ्लर्ट कर सकते हो, यू कांट फ्लर्ट विद योर ओन एम यू नो इन लाइफ। तो कंफर्ट जोन से मैं बार बार कहता हूँ सर मैं फेल हो गया, मैं अच्छा इसमें भी, अब तुम बोलोगे इसमें भी कांग्रेस पार्टी का हाथ है या BJP का हाथ है ना, या ISI का हाथ है, मैं हु इज रिस्पॉन्सिबल? बोला सर आई एम रिस्पॉन्सिबल। ओके, तो इसको ठीक कौन करेगा गलती को? बोला सर आई विल डू इट। मैं व्हेन? बोला सर नाउ। मैं नाउ मीन्स? बोला सर टुडे इटसेल्फ। प्लीज डू इट। मैं और कुछ पूछना है? पता तेरे को सब कुछ है कि गलती तेरी है, जिम्मेदार भी तू ही है, ठीक भी आप करोगे, करना भी अभी से है, तो व्हाई आर आस्किंग वेस्टिंग थ्योरी में पता होना, उसको प्रैक्टिकल में अप्लाई करना, टू डिफरेंट थिंग्स। दो चीजें हैं, एक आदमी खुद से करता है और दूसरा उससे करवाया जाता है। मैं दोनों तरीके करता हूँ। कुछ चीजें हैं जो बेसिक हैं जो मैं करवाता हूँ उनसे, वेदर यू लाइक इट और नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं बताता हूँ इवन इफ यू डोंट लाइक व्हाट आई टेल यू टू डू, मैं जो भी मन में सोचोगे मेरे बारे में सेम टू यू, ठीक है, वो तो पक्की बात है, हुक्म देने के साथ साथ बोल देता हूँ सेम टू यू। बट एट द सेम टाइम है ना, मुझे मालूम है कि कब तक मेरे पे डिपेंडेंट रहेंगे, तो व्हाट आई डू विद देम, मैं ब्रिंग देम ऑन दैट रियलाइजेशन पार्ट में, जहाँ उनको रियलाइज होता है, मैं रियलाइज कराता हूँ उनको कि मैं यार तू कर सकता है, पोटेंशियल है, बट तू कर नहीं रहा है। सो एंड रिजल्ट आपका ये होगा, देख लो रियलिटी चेक। एंड व्हेन दे रियलाइज ना, तो उसके बाद में फिर ऑटो मोड में चलता है। घर पे क्या है, एक तो एक ये भी बात है कि आप घर पे कितनी भी कोशिश करो ना, बच्चों को कुछ भी बताते रहो, पेरेंट्स की बात उनको समझ में नहीं आती। कुछ फिर बताने का तरीका होता है, आप सीधा आउटराइटली रिजेक्ट करो तो नहीं हो सकता, तुमसे कुछ नहीं होगा। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट इसका इम्पैक्ट मैं देख रहा हूँ। कहते सर मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं क्यों? कहते सर सब लोग कहते हैं, मैं सब लोग बोला सर मेरे फादर बोलते हैं, मेरी मदर बोलती हैं, चाहे उनकी भाव ठीक ना हो, मतलब भाव ठीक होगा, वो कहना नहीं चाहते बच्चे को, बट दे डोंट रियलाइज व्हेन है ना पेरेंट्स और रिलेटिव्स पड़ोसी जब इस तरह बोलते हैं, बोले इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा। जिसका थोड़ा मन कमजोर है ना, वो इतनी बिठा लेता है मन में बात, कहता नहीं सर मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, सारी दुनिया कहती है। आई टेल देम मैं 100% कर सकता हूँ। कैसा कॉन्फिडेंस आ रहा है थोड़ा, मैं खुद बोल के देख शीशे में कि मैं करके दिखाऊंगा, आई विल डू इट, मैं कर दूंगा पक्का, जान लगा दूंगा इतनी अच्छी लाइफ बनाने के लिए अपने पेरेंट्स के लिए, तो पक्का कर लेगा। 10 बार बोलने के बाद मैं डू दिस ऑटो सजेशन, कहता सर मुझे पॉजिटिव लग रहा है, तो मैं फिर इतना डिप्रेस होने की बजाय मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो दिन भर यही सोचता है, यही बोलता है, एंड दिस इज एग्जैक्टली मैनिफेस्टिंग ऑन ग्राउंड। यू स्टार्ट अदर वे राउंड, जहां तू बोल रहा है मैं नहीं कर पाऊंगा, तू रादर देन दिस थिंग, ये नहीं हटा दे बीच में, बोल मैं कर पाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, हो जाएगा यार मैनिफेस्ट। बट डू यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन? 100%। बारिश होते हुए देखी है अगेंस्ट द वेदर फोरकास्ट, 20 दिन में बारिश नहीं हो रही, एंड हुई है बिल्कुल आधे घंटे के अंदर बारिश। रोकना चाहो तो रुकेगी भी। मैनिफेस्टेशन में बहुत दम है, यू नो। व्हाट इज द राइट वे टू मैनिफेस्ट? मैनिफेस्ट, यू बिलीव इन व्हाट यू थिंक, यू नो, व्हाट यू फील, यू वांट समथिंग, शिद्दत से महसूस करना चाहिए आदमी को, ये चीज मुझे चाहिए। ट्राई इट समटाइम लाइफ में, क्या चाहिए। कहीं कुछ नहीं दिख रहा आगे पीछे मुझे जाने के लिए, ऐसी जगह खड़े हो जा में, बट है ना आई एम डेस्परेट टू गो समवेयर, कि मैं यार मेरे को कोई गाड़ी मिल जाती बहुत अच्छा होता, बट चाहिए मेरे को, आई रियली नीड टू रीच देयर, गाड़ी पक्का पहुंचेगी आपके सामने, ठीक है। सम वाया मीडिया विल कम टू यू एंड विल रीच वेयर यू आर सपोज्ड टू रीच देयर, ठीक है। देखो मैं बार बार कहता हूँ, जैसा सोचोगे वैसा लाइफ में होगा, बट अगर आप सोचना ही आपने नेगेटिव है, नेगेटिव भी होगा। आप अच्छा सोच के देखो, पक्का होगा मैनिफेस्ट। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मैनिफेस्ट नहीं होती लाइफ में। मैं पिछले 9 महीने में बहुत चीज़ें देखी हैं। 70% लंग फेलियर से 60% ठीक होते हुए देखा है, ठीक है। पैरालिटिक पेशेंट को खड़े होते हुए देखा है। एक आदमी ऐसा है जो आई डोंट नो हाउ टू पुट इट अक्रॉस, जिसने मतलब जिसको कोई एहसास नहीं था, कोई मर भी जाए ना, एट नो रिलेशन, मर गया ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, उसको दूसरे के लिए रोते हुए भी देखा है। लोगों ने बोला कि नहीं सर ये चेंज नहीं होगा, मैं कैसे नहीं होगा चेंज, 100% होगा, और तुम सब काम करोगे। मैं एक आदमी पीछे रह गया था, आई विल कंसीडर एवरीवन एज अ फेलियर, यू नो। मैनिफेस्ट होती हैं चीजें, 200% होती हैं। आप ट्राई करके देख लो। यू टेल मी समथिंग, व्हाट यू वांट, व्हाट्स योर विश, तरीका मैं बता दूंगा। यू वांट योर चैनल टू ग्रो, 2 तरीके हैं। पहला, एवरीवन है ना, ग्रोथ तो काम करता ही है, इंसान बच्चे पे काम करे, आप प्रोफेशनली काम करो,
I believe in manifestation 100%. बहुत सारी चीजें I have expected in life कि जो सोचा भी नहीं था वो चीजें हो जाना. हाँ, मैं तो कहता हूँ ऊपर वाला आपको अगर आपकी नीयत ठीक है ना और तबीयत ठीक है और एफर्ट सही जगह अलाइन है आपके, आप सिर्फ सोच लीजिए, काम आप ईमानदारी से कर दीजिए, वो 100% मैनिफेस्ट होगा, मच मोर देन व्हाट यू एक्सपेक्ट एक्चुअली. My father's whole life is a story of manifestation. ना रिसोर्सेस थे, पता भी नहीं था कि अगला दिन अगला महीना 3 बच्चे इन अ सिटी लाइक दिल्ली, अ वेरी स्मॉल जॉब, कि कैसे होगा. बट ही जस्ट केप्ट गोइंग. बस अपने एक्शंस में जितना वो कर पाते थे उतना करते थे और बाकी शायद मेरे ख्याल से मैनिफेस्ट ही करते थे, जिसको आज हम लैंग्वेज में मैनिफेस्ट बोलते हैं. उस समय में तो ये वर्ड्स भी नहीं पता होते थे. व्हेन वी वर यंगर वी डिडंट नो दिस, बट एक वो भरोसा कि हाँ हो जाएगा. भरोसे में तो दुनिया कायम है, बिल्कुल हो जाएगा 100%. ये सब चीजें आई थिंक दैट इज व्हाट आर्मी टीचेस यू. Abhi, life itself teaches you a lot of things. Life teaches you a lot of lessons. Sir, I have another question about you were in the army for so many years. You also stay away from your family. Not everybody gets to live with their family. How do you deal with loneliness? Because loneliness is becoming a very key issue with the youth today, with the people of today. Like you were saying कि वो 800 friends तो होते हैं उनके online list में, लेकिन actually में 4 लोगों के साथ भी real connection नहीं होता. So they feel lonely all the time. किसी से बात करना, किसी के साथ connection होना, that is not happening. So how do they deal with that feeling? Because that is now translating into multiple diseases and ailments also. See, army में loneliness नहीं है. Never. Remotest of the place है ना, at least और कोई नहीं तो एक आदमी तो होगा आपके साथ, है ना, who is your buddy pair. एक आदमी आपके साथ में, दुनिया आपके साथ चल रही है. That is how I feel about it, you know. And आर्मी में लोनलीनेस नहीं, बट सॉलिट्यूड, एंड सॉलिट्यूड इज अ ब्लेसिंग है ना. एवरीबडी इज लुकिंग, भागा दौड़ी में एटलीस्ट आपको अपने लिए टाइम मिल रहा है थोड़ा सा ना. सॉलिट्यूड, फैमिली से जो दूर रहते हैं, आपने बोला भाई अगर दूर रहते हो तो आपको है ना छुट्टी का मजा भी आता है, यू नो, है ना, कि यार जी लो अपनी जिंदगी. अभी जनता क्या करती है IT सेक्टर में, 5 दिन काम करती है, द एंटायर लाइफ इज ब्लडी रिवॉल्विंग इन सैटरडे एंड संडे, यू नो, यू लिव ओनली ऑन सैटरडे संडे, बैलेंस 5 days यू आर एग्जिस्टिंग, यू आर नॉट लिविंग. दैट इज हाउ इट वर्क्स. पर आर्मी में अगर आप साल में 10 महीने काम कर रहे हो तो 2 महीने अलग अलग छुट्टी आते हो. यू आर ऑलवेज प्लानिंग, छुट्टी में ये करेंगे, छुट्टी में वो करूँगा, पूरी जिंदगी जीने की कोशिश करते हो, है ना. यू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट इन दोज 2 months. एंड जब चिट्ठी वाले बोलते हैं कि सर छुट्टी चाहिए था, आई यूज्ड टू राइट ऑन माई ऑफिस, जो छुट्टी के लिए जो भी एप्लीकेशन आती थी, तो आई यूज्ड टू राइट ऑन दैट, हार्ड अर्न्ड एंड वेल डिजर्व्ड, आई हैव ए बॉल ऑफ ए टाइम, गो चेस. कमाता है आदमी, है ना. एंड पता है कि यार वापस पता नहीं टिकट कट जाए, वापस मिले, अगली छुट्टी पे पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे. अब दूर रहते हो, सेपरेशन, बट है ना, दैट एनहांसेस योर लेवल ऑफ एम्पैथी, कंपैशन, लव आल्सो टुवर्ड योर लव्ड वंस. सब मिस करते हो, बट देन यू आर इन कांटेक्ट. अभी तो फिर भी फोन आ गया, पहले फोन नहीं था, चिट्ठी होती थी, चिट्ठी बैठ के लिखते थे, दैट वाज एन आर्ट. अगेन इट इज लॉस्ट टुडे. सब कुछ SMS में हो जाता है. एंड टुडे जनरेशन, आपके पास में भैया 24 घंटे आप डिजिटल मोड में रहते हैं, इधर ऑन द स्क्रीन, ऑन योर लैपटॉप और योर अपना मोबाइल, एंड स्टिल यू क्लेम दैट यू आर लोनली. तो आपसे गरीब आदमी कोई है ही नहीं फिर तो. मैं वही बोल रहा हूँ ना, आपको सारी चीज़ें परफेक्ट चाहिए लाइफ में. कंफर्ट भी पूरा चाहिए, काम भी कुछ नहीं करना है, ठीक है, जिम भी जाना है, बॉडी भी बनानी है, ठीक है, बट उसके बाद में आपको स्पेशल फोर्सेस भी ज्वाइन करनी है, बट पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है. लोनलीनेस है ना, इज नो, मेरे को आप जंगल में छोड़ दो, आई विल स्टिल नॉट से आई एम लोनली, आई एम हैप्पी, आई विल एंजॉय दैट सॉलिट्यूड आल्सो. आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हो, दुनिया भर के दोस्त हैं आपके, अलग अलग सोशल मीडिया, फिर भी आप लोनलीनेस हो, दैट मीन्स योर चॉइस इज नॉट करेक्ट. ठीक है, यू आर नॉट पुटिंग योर एनर्जी. है ना, आप एक आदमी रखो अपनी लाइफ में, ठीक है, whom you connect well with, ठीक है, जो आपकी बात सुनता हो, जिसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो. भीड़ इकट्ठी करने का कोई फायदा नहीं है. लोनलीनेस कोई वो नहीं है कि भाई लोनली, कैसे लोनली हो सकते हो, आपके आगे पीछे परिवार है, ठीक है, दोस्त हैं, बाहर निकलते हो, सोशल दायरा बहुत बड़ा होता है इंसान का, कहीं ना कहीं तो कनेक्ट करना ही चाहिए ना. बट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो दुनिया आके आपसे बात करेगी, आप खुद किसी से बात नहीं करते हो, हर चीज़ में आप नाराज रहते हो, कमरे अपने बंद रखते हो. भाई अगर दरवाजे खिड़की बंद रखने आपने, तो हु इज कमिंग इन योर रूम, है ना. यू नीड टू स्टेप आउटसाइड इनटू द फ्रेश एयर, गो मीट पीपल, स्माइल. एक गाना है ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड, सुना है? नहीं, मैंने सुना नहीं है. लिसन टू दैट सॉन्ग, व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड, है ना. उसके वर्डिंग सुनना आप. डू यू थिंक दैट people are taking less effort to build the human connection than they used to take earlier? मच रेलेवेंट. देखो क्या होता है, पहले गांव के अंदर शादी होती थी ना, तो कम से कम 400-500 लोग नॉर्म होता था. और किसी की लड़की की शादी एफर्ट लेस होता था, बिल्कुल, यू नो. हर घर से गद्दे आते थे, तकिए आते थे, बिल्कुल पूरा गांव के स्कूल में लगता है. ये मैंने देखी हुई चीजें हैं. डिटेल होते लोग बस स्टैंड से जो उनको शिकंजी पिलाते थे, ठीक है, एंड
नहाने के लिए अलग से बंदोबस्त करते थे, खाने का जो बनता है उस पर एक बंदा बैठता था कि आप खाने का बंदोबस्त देखोगे, जितनी ज़रूरत है खाना उतना बाहर जाएगा, बाकी आप ब्लॉक करके रखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ठीक होना चाहिए। एक आदमी वहाँ पे अकाउंटिंग रखता था कि किसने कन्यादान में कितने पैसे दिए। एंड 400-400-500 लोग आते थे, बट उनको पूरे गांव के लोग मिल करके करते थे। हर घर से बाल्टी भर भर के दूध आते थे, ठीक है। दैट वाज द लेवल ऑफ द कनेक्शन। और किसी को नहीं पता लगता भाई शादी होगी लड़की की, लगता है जिम्मेदारी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज की तारीख में पड़ोसी भी आपको देता है, एक लोटा दूध देता है, साथ में पर्ची लगाई देता है जी 75 रुपए। कहाँ है कनेक्शन? एवरीथिंग हैज बिकम सो वेरी मटेरियलिस्टिक, यू नो। सर एक्चुअली यू नो ये सब ह्यूमन कनेक्शन में उतना बिलीव ना करना, या फिर अपने घर से बाहर ना निकलना, जैसा आपने कहा कि यूथ घर से बाहर नहीं निकलता है एंड दे एक्सपेक्ट कि सब हमारे पास आए, दैट्स व्हाई दे फील लोनली बिकॉज दे डोंट मेक एन एफर्ट, बट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी आर डूइंग इज ऑल्सो out of fear. We are operating a lot out of fear. You know, fear of rejection. If you reach out to someone to say, hey, I want to be your friend, and if they reject, you don't want to face that. So you don't even extend that hand forward. So बहुत सारे ऐसे चीजों में fear आपका decision making को drive कर रहा है. So how does one manage their fear? Face it first of all. Until you face something, you're never going to grow. मैं हमेशा बोलता हूँ प्रॉब्लम सामने आती है तो लेफ्ट और राइट मत जाओ, गो थ्रू एंड थ्रू, निकल जाओ। दैट इज द बेस्ट वे। आई शट डाउन माई ट्रेनिंग सेटअप, है ना, एक हफ्ते पहले। तो मेरे को पूछा स्टूडेंट ने, सर अब क्या करोगे? मैंने कहा तुम्हें सिखा रखा है, लेफ्ट नहीं जाना, राइट नहीं जाना, गो थ्रू एंड थ्रू। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू डू। आई एम गोइंग थ्रू एंड थ्रू एंड विद इन 3 weeks एंड यू विल गेट अ फील ऑफ इट। आई विल गो थ्रू एंड थ्रू। मैं जगह नहीं ढूंढनी है, ढूंढ लूंगा। नहीं मिली, रोड के ऊपर खड़ा होकर काम करूँगा, गाड़ी में बैठ के एक जगह दूसरी जगह जाऊँगा, कैंप स्टूल निकालूंगा, खड़ा होकर काम करूँगा, गाड़ी में बैठ के काम करूँगा। जगह नहीं मिली तो 100% करूँगा। ओनली थिंग इज आई वांट टू डू समथिंग, रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। कोई बोल रहा है स्पॉन्सर ढूंढने दो, गाड़ी चाहिए, कोई बात नहीं, होगी ठीक है, नहीं तो भैया पैदल यात्रा कर दूंगा कुछ ना कुछ। तो फियर को फेस करना चाहिए। सी क्या नुकसान क्या है, अच्छा मुझे बताओ आप फियर को फेस करने में। एनी काइंड ऑफ फेयर, आपका डर जायज होना चाहिए ना। डर के भी एक वो है पैरामीटर्स। आपने गलती करी है, पेरेंट्स से डर लग रहा है, मैं क्या डर है? सर वो मुझे डांटेंगे। मैं ठीक है मान लिया। मैं क्या होगा? सर मारेंगे। मैं जान से मार देंगे? बोला नहीं। मैं तो मतलब जान तो नहीं जाएगी ना? बोला नहीं सर। मैं बता दे फिर। कैसे? बहुत गुस्सा करेंगे। मैं गलत काम करना चाहिए? बोला नो सर। मैं कर दिया ना? तो नहीं। बोला हाँ। तो मैं प्लीज़ एक्सेप्ट इट यार, एटलीस्ट एक तेरे फादर को ना वो रहेगा कि ऐसी गलतियाँ हुई जहाँ पे लोगों ने 30,000 रुपये गम कर दिए। मैंने इस की सर 30,000 रुपये मुझसे गिर गए, फादर ने दिए थे किसी को देने के लिए। सर मुझे आपसे 30,000 रुपये चाहिए सर, मैं बाद में दे दूंगा, अपना आधार कार्ड शेयर करता हूँ ऑल दैट। आई कैन गिव यू 40,000 ऑल्सो, नॉट एन इशू, बट दूंगा नहीं। मैं तूने FIR दर्ज कराई? कहते सर FIR तो नहीं कराई सर। मैं क्यों? कहते सर पुलिस तो आपको पता ही है जैसी है। मैं पुलिस का है ना थोड़ा कम बन कस्टोडियन, डोंट इशू सर्टिफिकेट ऑफ पुलिस। पुलिस कैसी है? टॉक अबाउट योरसेल्फ, यू आर सपोज टू लॉन्च एन FIR ना। मैं पैसे तू कमा के लेके आया था? बोला नो सर, फादर ने कमाया। मैं मेहनत से कमाया ना? बोला हाँ। तो मैं मेहनत से आपके फादर ने अपने आप को घिस के पैसे कमाए हैं 30,000, और तू 3 किलोमीटर भी ढंग से नहीं ले जा सका, एंड यू ब्लडी डोंट लॉन्च एन FIR। कह रहा है कि पुलिस है ना करप्ट है, मैं वहीं आगे ठोक दूंगा मैं तेरे को, ठीक है। पुलिस अपना काम जैसा कर रही है अच्छा कर रही है, तो अपनी जिम्मेदारी ले। तूने FIR क्यों नहीं कराई? लीगली यू आर इनकरेक्ट, मॉरली ऑल्सो यू आर रॉन्ग। फादर को भी नहीं बताना चाहता। कहता नहीं सर, मैंने अपने फ्रेंड से लिया था, उसने बोला था कि 1 महीने में दे देना, बट उसने रात को दिया था सर, और अभी फ़ोन करती है कि अभी चाहिए पैसे वापस। अच्छा, और मैं फादर पे भरोसा नहीं है तेरे को? कहता है सर फादर पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, बहुत गुस्से वाले हैं। मैं जिस आदमी ने तुझे पैदा किया उस पर भरोसा नहीं है। और एक सो कॉल्ड फ्रेंड जिसने बोला था 1 महीने में लेना, वो तुझसे 24 घंटे में वापस मांग रहा है। इज ब्रीदिंग डाउन योर नेक एंड यू आर ओके विद दैट। मैं गजब का आदमी है यार। एंड मैं क्यों अपनी बात पे, मैं जो आदमी अपने फादर पे भरोसा नहीं कर रहा, यू वांट मी कि मैं आप पे भरोसा करूं जस्ट ऑन योर आधार कार्ड? कम ऑन यार, यू आर डबल स्टैंडर्ड्स। मैं आ जाए तो मैदान में, पहले मेरे को कन्विंस कर, मैं तेरे को 1 लाख भी दूंगा। मैंने कहा सी यू आर रॉन्ग। बोला सर मेरे फादर को आप नहीं जानते, मैं तू बहुत अच्छे से जानता है। वॉक अप टू योर फादर, ठीक है, एंड स्पीक टू हिम बोल्डली, और उनको बताना जो मैं बताता हूँ। तो यही से मैंने को जाके बताओ कि पापा आपने मेरे को जिम्मेदारी का काम दिया था एंड आई फील यू। मैं गया, बाइक से केयरलेस था, जो भी था, पर पैसे मुझसे गिर गए। आपको गुस्सा आ रहा है, आप मुझे डांट लीजिए, आप मुझे पीटना चाहते हैं पीट लीजिए, बट आई जस्ट वांट टू कन्फेस टू यू, मुझसे पैसे गिर गए, मैंने गलती करी है, लेकिन मैंने FIR लॉन्च करी है और ये उसकी रिसिप्ट है पापा, एंड इट इज़ हार्ड एंड मनी, आई हैव ए रियलाइजेशन। आप मेरे को सिर्फ थोड़ा सा समय दीजिए, मैं मेहनत करूँगा, पार्ट टाइम जॉब करूँगा, लेकिन मैं आपके पैसे इंस्टॉलमेंट में वापस करूँगा। मैं लेट मी सी व्हाट योर फादर डज। सो देन ही कॉल्ड अप, ही सेड सर आई लव यू। मैं व्हाट हैपेंड? क्या सर, आई डिड एग्जैक्टली द सेम थिंग, आई टोल्ड माय फादर
एंड ही सेड कि बेटा क्या बात कर रहा है यार, 30,000 से क्या फर्क पड़ता है, हार्डली एनीथिंग, फॉरगेट अबाउट इट, बट आई एम सो हैप्पी है ना, तू रिस्पॉन्सिबल बन गया यार, बहुत जिम्मेदार हो गया तू, आई कैन बिलीव यू, आई कैन रिलाई ऑन यू, 30,000 कोई बात नहीं है, बट है ना जब तूने बोला कि मैं मेहनत करूंगा, पैसे कमा के अपनी इंस्टॉलमेंट में दूंगा, कह रहा है यार तू, मैं अब जिम्मेदार हो गया, आई कैन रिलैक्स, यू नो, फियर को फेस करना पड़ता है। आई एम वन एग्जाम्पल, एक भी वर्ड नहीं आता था बोलना, कॉन्फिडेंस इतना कमजोर था कि 4 लोगों के सामने अगर खड़ा कर दो मुझे बोलने के लिए, मेरी जान निकल सकती डर के मारे, यू नो, जाके पेड़ से बातें करता था, फिर धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ाता था और जोर से बोलता था, कॉन्फिडेंस बढ़ा, शीशे में देख के बात करता था कि मैं कर लेगा राजीव, मेहनत कर यार, पक्का करना है बिल्कुल, पापा मम्मी के लिए, अपने लिए, दिस हाउ इट ग्रोन। 11th-12th में भी सर से लेके नीचे तक पूरा प्लास्टर ऑफ पेरिस लग करके ऐसे स्टैचू बनता था कि चलो स्टेज पे जा रहा हूँ बट कोई मेरे को देख ना पाए, दैट वाज माय लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड टुडे आई एम टॉकिंग, मेरे को आज कहीं खड़ा कर दो, जंतर मंतर पे, लाल किले पे, जो टॉपिक दे दो बोल दूंगा पक्का, फेस करना पड़ेगा तभी आप निकल के आओगे, चमकेगा भी शरीर, ठीक है, एंड फौजी बूट, जितना रगड़ोगे उतनी शाइनिंग आएगी, सेम वे, डर डर के मरना है। मैं तो लोगों को क्लास में बोलता हूँ, मैं यार आज से कई साल पहले संत आए थे, बहुत बड़े है ना, संत श्री गब्बर सिंह जी शोले में, ये जो डर गया सब मर गया, तो इफ यू वांट टू बी डेड, बिहेव डेड, देन ठीक है, लिव अ डेड लाइफ, इफ यू वांट टू रियली लिव, कम आउट इन द ओपन, एक्सप्लोर, गलती होगी कोई बात नहीं, नतीजे बुरे आएंगे, नतीजे बुरे मतलब फेल हो सकते हो आप, बट कोई बात नहीं, यू कैन ऑलवेज मेक ए कम बैक, फाइट वंस मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट, बट यू कांट गिव अप। डर के तो आज तक तो किसी का भला हुआ नहीं है, somebody claims कि भी मैं डर डर के बड़ा सक्सेसफुल हूँ, प्लीज गुड फॉर हिम। I like that the only way to manage your fear is going through it, go through it ना, ऐसी कौन सी बड़ी चीज है, डर के तो सारे ही मर जाते हैं, जानवरों को देखो, डर तो उनको भी बहुत लगता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, बट दे फाइंड देयर वे, पर इंसान में जानवर में इतना तो फर्क होना ही चाहिए, भगवान ने आपको ताकत दी है बोलने की, सुनने की, एक्सप्रेस करने की, ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा प्लीज सीक गाइडेंस, पेरेंट्स से बात करो, मेंटोर से पूछो, टीचर से पूछो, दोस्तों से पूछो, गूगल बाबा से पूछो, कुछ तो सॉल्यूशन होगा। आज की तारीख में आप पूछो कि सब्जी कैसे बनानी है, कैसे बनाना है, फलाना काम कैसे करना है, आपको गूगल इतने पेजेस दिखा देगा, आप थक जाओगे पढ़ते पढ़ते, तो आप फाइंड इट आउट। बाकी लेक्चर अटेंड करूंगा किसी का, है ना, उससे कुछ भला नहीं होने वाला। Sir, what are your top 3 tips for confidence building the army way? Okay, number 1, सबसे जो इम्पोर्टेंट है, गुड रूटीन। जो आदमी 24 घंटे का अपना हिसाब किताब मजबूत रखता है वो डेफिनेटली जिंदगी में कामयाब होगा। नॉट बाय द क्लॉक, इतने बजे उठूंगा, इतने बजे ये करूंगा, स्पेस इट आउट वेल, प्रायोरिटाइज, फिजिकल में थोड़ा काम करना है, थोड़ी पढ़ाई करनी है, आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, आपका बिजनेस है, आपके यू नो ऑफिस वर्क हैं, जो भी चीज़ें हैं, कि टाइम पे प्रायोरिटी के हिसाब से अपने कामों को कंप्लीट करो, जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है अपने काम खुद कीजिए आप, है ना। माई फादर इज 76, माई मदर इज 72, वो दोनों अपना काम सारी चीज़ करते हैं, कभी इतनी छोटी सी चीज़ के लिए भी नहीं बोलते कि वे बच्चों को तंग करें किसी चीज़ के लिए, ठीक है, दे आर लाइव एग्जाम्पल। आप अपना जो भी काम है, ज़्यादा से ज़्यादा काम जब तक हाथ पैर काम कर रहे हैं खुद करना चाहिए, खुश होकर करना चाहिए, और एक अच्छा रूटीन होना चाहिए जिसमें उठने का टाइम, बैठने का टाइम, खाने का टाइम ना आप अच्छा फॉलो कीजिए, गुड रूटीन, दैट इज वन, इट विल गिव यू गजब का कॉन्फिडेंस, क्योंकि आप 24 घंटे में एक सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, नोबडी इज डिक्टेटिंग यू, बट यू आर डूइंग इट वॉलंटरली एंड विलिंगली, इट विल गिव यू गुड पेडेस्टल थ्रू द लाइफ। सेकेंड इज फिजिकली एंड मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। जो आदमी मेंटली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग है ना, वो कोई भी चैलेंज, कोई भी फेस करेगा। बट अगर डेफिनेशन ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल फिटनेस सिर्फ 6 पैक्स ही है, आई डोंट बाय दैट आइडिया एट ऑल, ठीक है। फिजिकल फिटनेस आदमी चाहे ना 250 ग्राम का दिखता हो, अगर मेंटली मजबूत है ना, स्टिल टेक ऑन। तो फिजिकल फिटनेस पे लोग क्या, कोई जिम करते हैं, कोई कहते हैं जुम्बा डांस करता हूँ, भाई खुशी के लिए जो भी करते हो, बट फिजिकल मतलब ये है, लग लोग गई कोई खास बात नहीं, बॉल्स, ठीक है। और अगर आपका मेंटल कोई है, किसी ने किच कह दिया, कुछ ब्रेकअप हो गया, किसी का कोई कमेंट आ गया, आप डिस्टर्ब हो गया, यू आर क्राइंग, व्हाट इज द पॉइंट। दूसरी चीज़ हुई है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए। एंड तीसरा है ना टाइम मैनेजमेंट। टाइम पे आप अपना काम कर लीजिए, कॉन्फिडेंस गजब का आएगा। एंड लर्निंग, एक्वायर स्किल्स। कॉम्पिटिशन में उतर रहे हैं बट आपने तैयारी नहीं करी, नॉलेज कैसे आएगा? यू गोइंग फॉर द इंटरव्यू बट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, यू आर नॉट रेड एनीथिंग, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी हो। आपको स्टेज पे खड़ा कर दूँ, बोलो ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताइए, इफ यू आर नॉट रेड अबाउट टॉपिक, आपको लगता है कॉन्फिडेंटली, यू माइट बी वेरी वोकल, आई माइट बी वेरी वोकल, हम बड़े अच्छे बोल लेते हैं, बट जब टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं है विच इज फैक्चुअल बेस्ड, तो कॉन्फिडेंस भी कहाँ से आएगा? बट अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है तो फिर क्या, फिर तो आप अच्छे से पक्का बोलेंगे, कुछ वैल्यूएबल कंटेंट होगा आपके पास में। गुड रूटीन, मेंटल फिजिकल फिटनेस, एंड तीसरा अवेयरनेस एंड टाइम मैनेजमेंट। टाइम पे अपना काम कर लीजिए और जो ज़रूरत है वो पक्का पढ़िए, आप करेंगे तो कॉन्फिडेंस पक्का आएगा।
These things ना बड़ी simple sound करती है, but when you have to really apply in life, especially where most challenges coming. No, it is simple in theory, but if you do on ground, शिद्दत से, then it is simpler. भाई टाइम पे उठना किसके लिए कर रहे हो आप हिंदुस्तान में दूसरे के लिए थोड़ी कर रहे हो, दुनिया में मैं अपने लिए कर रहा हूँ. अगर मैंने फिजिकली फिट करना है तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, दूसरे के लिए थोड़ी कर रहा हूँ. आप दुनिया का फायदा बताइए ना, जो मैं बता रहा हूँ उस चीज में. फायदा किसका है? पूरा फायदा आपका है. और आप खुद अपने आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो फिर बाहर से कौन आएगा लेने के लिए? फिर देन तो देयर इज नो एंड टू कंप्लेन. आप करते रहिए जिंदगी भर, हर चीज में मतलब अगर कमी निकाल रहे हैं कैसे चलेगा? आपके फायदे की बात है, छोटी सी चीजें हैं, आप ही को करनी पड़ेगी. और अदरवाइज डोंट. एक्सपेक्टेशन बहुत आए हैं, करना कुछ भी नहीं, कैसे चलेगा? इट इज सिंपल. सुनने में लगती है, करने में बहुत मुश्किल है. कोई मुश्किल नहीं करने में, आप करके तो देखो. आप खुद बताइए, कोई चीज अगर आप रूटीन में फॉलो कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ डेली रूटीन, अगर किसी चीज को, यू आर नॉट व्हाट यू आर, यू बिकम व्हाट यू रिपीटेडली डू. आप रोज वो चीज करोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? Absolutely. आपका काम आसान होगा नहीं होगा? Absolutely. फिर मुश्किल क्यों है? Sir, what are the 3 things that we can learn from soldiers? From soldiers, There are so many things, but yeah, what there are so would many be things. the best things that Okay, we best should learn things. from them? Okay. Number 1, train hard, है ना, and prepare for the worst. फौज इसलिए खड़ी नहीं करी गई है, फौज इसलिए खड़ी करी है कि कल को लड़ाई हो तो, है ना, फॉर योर सॉवरेनिटी और एनीथिंग. द वर्स्ट दैट कैन हैपन टू अ नेशन, यू आर गोइंग इनटू वॉर, यू नो. पूरी लाइफ साइकिल, बायरिदम, पूरी इकोनॉमी, सब कुछ चेंज होता है. कंट्री 10 साल पीछे चली जाती है एक झटके में. एंड दैट इज द वर्स्ट सिनेरियो, यू नो, एनीबॉडी वांट इन लाइफ. सो लाइफ में भी, है ना, सोल्जर से ये सीखना चाहिए कि आप जब भी करते हो, यू शुड ऑलवेज, है ना, प्रिपेयर योरसेल्फ हार्ड, वेदर इट इज कॉम्पिटिशन, लाइफ सिचुएशन, एंड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. लड़ाई होती है तो कोई भागता नहीं है फौज में, कोई रोता नहीं है. सेम वे लाइफ में प्रॉब्लम आती है, आप चैलेंज करो, फेस करो, एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. छोटी छोटी चीजों में क्यों भागना है पीछे? दैट इज वन थिंग. सेकेंड थिंग है ना, टू कैरी दैट, यू नो, एटीट्यूड. कुछ चीजें हैं जो ऑटोमेटिकली, जैसे आप सोल्जर बोलते हो, साथ में, है ना, दिमाग में आती हैं. डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ऑनर, ड्यूटी, सर्विस. ये सब जो चीजें हैं, दीज आर नॉट मेरली एडजेक्टिव्स, है ना, व्हेन इट कम्स टू सोल्जर्स. सोल्जर है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि बेयरिंग अच्छी होगी, फिजिकल फिटनेस बढ़िया आला दर्जे का होगा, कपड़े पहनने का तरीका अच्छा होगा, लेडीज के साथ में कंडक्ट अच्छा होगा, बच्चे हैं उनके प्यार से बात करेंगे, ठीक है, अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचेगा, ड्यूटी अपनी टाइम पे करेगा, अच्छे से करेगा, ठीक है, कंप्लेंट्स नहीं करेगा, ठीक है, हमेशा यस बोलेगा, नो नहीं बोलेगा. इवन इफ ए सोल्जर इज ब्लडी डाइंग, द लास्ट वर्ड दैट शुड कम आउट ऑफ द सोल्जर्स माउथ इज यस सर. दैट शुड बी द एटीट्यूड. दिस आर द थिंग दैट वन शुड लर्न. मर जाऊंगा लेकिन लास्ट है ना, बोल्ड होनी चाहिए, यस सर, हो जाएगा. तो छोटी छोटी चीजें आप ड्यूटी अपनी ठीक रखो, अपने लिए भी, अपने करियर को लेकर के, अपनी सोशल लाइफ को लेके, फैमिली लाइफ को लेकर के, टुवर्ड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन जनरल लाइफ, है ना. एंड थर्ड थिंग इज व्हाट आई से ना, कम्रेडरी एंड सोशल थिंग, है ना. फौजी आदमी जैसा भी हो, बट एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड होता है, ना. एक यूनिट के अंदर 1200 लोग हैं तकरीबन, है ना. 1200 लोग एक दूसरे के बारे में जानकारी रखते हैं, एक ही तकलीफ सारे शेयर करते हैं, है ना. एक की खुशी होती है वो भी सारे सेलिब्रेट करते हैं. एक्सपेक्टेशंस आर लो, बट जब दिक्कत आती है तो एक दूसरे को पीछे खींच लेते हैं, खुद आगे चले जाते हैं. दैट इज समथिंग विच एवरीवन शुड लर्न, ना, कि दोस्ती करो तो फिर ऐसी होनी चाहिए मजबूत. इट शुड नॉट बी टेन्योर बेस्ड, इट शुड नॉट बी, ना, गेट बेस्ड, इट शुड नॉट बी रिलेटेड टू प्रमोशन, अपना फायदा नुकसान एंड ऑल दैट, है ना. जो आदमी फौज में एक साथ आया था वो एक साथ, है ना, कई बार चले भी जाते हैं एक दूसरे के चक्कर में. That kind of friendship and camaraderie is very very rare. You know, commander always lead when it is, you know, danger. ठीक है. एंड मस्ती के टाइम है, कंफर्ट है, कुछ करके बाहर आएगा. चैटवुड क्रेडो जो बड़े अच्छे से डिफाइन करता है, whenever it comes to comfort, है ना, so first and foremost always comes your nation and the countryman, then comes your men and last is you. ठीक है. बट ये एटीट्यूड नहीं है बहुत लोगों में बाहर. हर आदमी पहले सोचता आई मी माई सेल्फ, सबसे पहले मैं, उसके बाद में मेरा अपना परिवार, और बाद में देखेंगे देश वेश को. दिस इज समथिंग वेरी रेयर, यू नो. दिस फॉर्स ट्रेन्स यू एंड टीचर्स यू दैट वे. The complete other way around. ठीक है. आप देयर इज नथिंग कॉल्ड एज आई. तो मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ, मैं 100 लोगों तो में से एक भी अगर ट्रेनिंग में पीछे रह गया, जिसकी जो प्रॉब्लम है, somebody is into depression, somebody is not happy, somebody has got anger issues, any damn thing, जो पीछे रह गया ना, 100% फेल हो तुम मेरी तरफ से. डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम योरसेल्फ. यू माइट बिकम समथिंग इन लाइफ, but then nothing good about you. If you want to impress me, then I want all 100 guys to cross this line. एक भी आदमी जैसा है वैसा नहीं जाना चाहिए. मेरे को फिट चाहिए जाते समय, खुश चाहिए सारे. And you need to carry everyone. The last man, no one to be left behind. This is something, है ना. नहीं तो बाद में रैट रेस में ही है सारी जनता, but at the end of the rat race you still remain a rat only. है ना. मेरा सबसे बड़ा होना चाहिए, मेरी लाइक सबसे ज्यादा होनी चाहिए, मेरा
चैनल सबसे ज़्यादा ग्रो करना चाहिए। मेरा कितना मेरा, आई हैड नेवर सीन एनीबॉडी टेकिंग बैग अलोंग विद देम व्हेन यू गो फ्रॉम हियर, कहीं तो तसल्ली रखनी। एंड यू हैव सीन मेनी पीपल गोइंग। व्हाट इज योर एम्बिशन नाउ फ्रॉम हियर फॉर योर सेकंड इनिंग्स? एम्बिशन मेरी क्या है? माई एम्बिशन इज वेरी सिंपल। आई वॉन्ट टू क्रिएट ए डोमिनो इफेक्ट, जो मैं बोल रहा था ना, खुश रहना चाहिए। पहले एक आदमी खुश था, फिर उसका 10 आए, फिर 100 आए। आई वॉन्ट दिस थिंग टू एक्सप्लोर, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आसपास कॉन्फिडेंट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुश चाहिए, है ना। उनके परिवार हैं स्ट्रॉन्गर फैमिलीज, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में रिफ्ट कम चाहिए, है ना। चिल्ड्रन शुड हैव मोर लव एंड रिस्पेक्ट फॉर देयर पेरेंट्स। मैं कई बार बताता हूँ, एक पंजाबी में कहावत है कि भाई लख चाहे उन्होंने, है ना, कसूर हुए हैं, माँ बाप में कभी भी गलती नहीं निकालनी चाहिए। तरीके गलत हो सकते हैं उनके, है ना, कुछ केसेस जेन्युइनली गलत है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, उनकी भावना ठीक होती है, बट शायद बात करने का तरीका या बताने का तरीका गलत होता है। बट है ना, मैं उनको ये बताता हूँ, मैं यार 2 ही ऑप्शन है लाइफ में। बहुत गिल्ट लेकर के चलते हैं, रिग्रेट लेकर के, है ना, बहुत तगड़ी वेंजेंस देखी है मैंने। एंड आई टेल देम, मैं 2 ही ऑप्शन है, वन इज फॉरगेट एंड सेकंड इज फॉरगिव। तीसरा कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। आई सीन ए केस जहाँ पे एक बंदे ने बोला कि माय फादर वाज ऑन डेथ बेड एंड ही वाज डूइंग दिस थिंग, माफ करना, कह रहा मैं बात भी नहीं कर पाया उनसे, अब बहुत बड़ी गिल्ट है। मैं कोई टेंशन की बात नहीं, मैं कम, आई विल एक्सप्लेन टू यू, देन वी हैड अ हार्ट टू हार्ट टॉक। आई एम नाउ फीलिंग गुड, कैसे नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई ही वाज डूइंग दिस, आई विल टेल यू, बट यू क्रिएटेड दिस सिचुएशन, है ना, व्हाई यू वेटेड फॉर सच अ लॉन्ग, और क्या फायदा हुआ इतना रख करके अंदर। अब या तो किसी को माफ कर दो, एंड टिल द टाइम यू डोंट फॉरगेट, डोंट फॉरगिव, फॉरगेट। एटलीस्ट जब तक नहीं माफ करने की पोजीशन में आते, मेंटली आप नहीं एक्सेप्ट करते किसी फैक्ट को, तब तक भूल तो जाओ कम से कम, बाकी चीज़ों में फोकस करो। लाइफ में बतेरी चीज़ें हैं, बट पकड़ के रख लेना इज नॉट अ करेक्ट थिंग, है ना। तो है, इशू तो है ये। बट आपकी एम्बिशन की भी वी वर टॉकिंग अबाउट। मेरी एम्बिशन, सॉरी आई गॉट ड्रिफ्टेड। मेरी एम्बिशन तो सिर्फ यही है कि ना, इंडिया हो चाहे बाहर हो, कहीं पे भी, है ना, एटलीस्ट ऐसी सोसाइटी हो जहाँ पे ना, अब जैसे 2 चीज़ें हैं आप देखोगे कॉमनली ना, माई स्टूडेंट्स दे आर डूइंग इट, आई बीन टू OTA, वहाँ पे भी या बाकी जगह जो बोल रहे थे बॉल्स, लोग पूछते बॉल्स का मतलब क्या है। बॉल्स का मतलब यही है कि इग्नोर है यार, है ना, डोंट टेक एवरीथिंग टू सीरियसली इन लाइफ, ठीक है, इग्नोर कपल ऑफ थिंग्स। एंड दूसरा, बार बार बोलते आई लव यू, हर एक जगह है। पेरेंट्स बच्चे को बोलते, मैं आपने बोला कभी अपने बेटे को? बोला नहीं। मैं बोलो नहीं, मैं कभी बोला नहीं, मैं बोल के देखो, जान थोड़ी चली जाएगी। मैं तुमने अपने डैड को बोला सर, वो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, मैं जानता किसी को? बोला नो। मैं इस आदमी को जानता, कहते सर मेरे फादर है। मैं कमाल है यार, जिस आदमी ने पैदा किया, जिसके हाथ है, तो ये सोच रहा है लोग क्या सोचेंगे। मैं बोल देता हूँ डैड को, मैं सर आई लव यू सो मच, मैं अभी कोशिश करके देखो, यू कैन ऑल्सो स्पीक। तो लोगों को सिखाया, हर जगह छोटे बड़े सब बोल रहे हैं आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मेरा सिर्फ इतना सा कंसेप्ट है कि ना, आई वांट टू सी हैप्पी पीपल मोर एंड मोर, स्पेशली यंगस्टर्स। खुश रहें, लाइफ को ना खुल करके जिए। एक लाइफ है, ऐसे सरक के जिएंगे, रो के क्या जिएंगे। खुश रहें, मोटिवेटेड रहें, अपने लिए अच्छा करें, अपनी फैमिली के लिए अच्छा करें, एंड बी नाइस टू पीपल, यू नो, डोंट बी रूड। इतनी सी ख्वाहिश है, दैट इज व्हाट आई वांट टू डू। Because the other day I was telling, you know, I asked them, how you want to be remembered once you're gone? So they said, sir, we want to be remembered as loving, caring, dynamic, और पता नहीं क्या-क्या adjectives. Somebody asked me, what you think, how you want to be remembered? I don't want to be remembered by anyone once I'm gone. I want you to learn to live happily, है ना, without me also. ठीक है, learn to live life. कब जियोगे? फौज में जाओगे तभी खुश रहोगे, नहीं जा पाए तो so what? मैं फौज में था, बड़ा खुश था, मर जाता ऐसा लगता था यंगस्टर ना, कि भाई फौज में नहीं गया तो क्या होगा मेरा। आई वेंट देयर, मेहनत करी, बाहर आया, वो भी अपनी खुशी से आया, वॉलंटियर, ठीक है। बट नाउ आई क्रिएटेड माई एन आर्मी ऑफ माई ओन। मेरी अपनी आर्मी है खुद की, दुनिया भर के स्टूडेंट्स हैं, बट स्टूडेंट के साथ में ये नहीं कि किस दिन खत्म हो गया तो हो गया, दैट इज अ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप। 2 बजे 3 बजे 4 बजे खाना लेके एयरपोर्ट बस स्टैंड जहाँ होता हूँ पहुँचते हैं वो लोग पक्का, जबकि मैं बताता नहीं, बट वो बताते हैं सर ट्रेन यहाँ पहुँच गई, फ्लाइट में भी मॉनिटर करते हैं सर यहाँ पहुँच गई। हाउ यू गाइस डू ऑल दिस, ठीक है। अभी भी रात को 12 कितने बज रहे हैं, 1 बजने 1:15 हो गया, एंड वो अभी भी बोलूंगा ना तो अभी आ जाएंगे 1 घंटे में, सर हम आ रहे हैं मिलने के लिए। दैट इज द काइंड ऑफ लव एंड अफेक्शन आई हैव। सो आई गॉट एक्सटेंडेड फैमिली। अभी जब जाता हूँ उनके पेरेंट्स भी साथ में जुड़ गए हैं, दे आल्सो कम कि हमें भी मिलना है, नाउ दे से कि हमें भी कोर्स करना है, आप भी आ जाओ। सो आई वांट टू सी ए हैप्पी सोसाइटी। अगर देखो एक परिवार अच्छा रहेगा तो आपका मोहल्ला भी ठीक रहेगा, मोहल्ला ठीक है, सोसाइटी अच्छी बनेगी, society achieved as such, you are growing stronger as a nation, you know. True, very true. So we have talked about so many things under the sun. You've talked about, you've guided us to understand our fear better. आपने confidence को लेकर बातें की, आपने अपने attitude, discipline, बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ बातें की.
You spoke as a soldier, you spoke as a teacher, you spoke as a healer on the Journey Within podcast. Now, I would like to bring this conversation towards a closing note. And जाते जाते बस आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ that what is your definition of success? Oh, good question. What is my definition of success? मेरी success definition ये है कि it is not quantifiable on certain parameter. कि मैंने पैसे ज़्यादा कमा लिए, है ना, मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा हो गए, या मेरे को अवार्ड मिल गया, और आई एम नंबर 1 पोजीशन इन एनी फील्ड. माई डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज वेरी सिंपल, है ना. इट शुड हैव अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट. इफ़ यू आर गुड विद योर लैंग्वेज, है ना, और आप अच्छा करते हैं, लेकिन आपने 4 लोगों को कॉन्फिडेंटली बोलना नहीं सिखाया, देन यू आर नॉट ए सक्सेस. फिजिकली आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी फिट, बट मैंने 10 लोगों को ये नहीं बताया कि कैसे फिजिकली फिट रखना है. व्हाट आर द पॉइंट? यू माइट बी इन अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैंने बहुत कम टाइम में बहुत पैसे कमाए, लेकिन आपने 4 लोगों की उस पैसे से मदद नहीं करी, और आपने 4 लोगों को ये नहीं सिखाया कि भी मेहनत करके पैसा कैसे कमाना है, देन इट इज नो यूज. आप फोर्ब की लिस्ट में नंबर 1 पे हो गए, नो इश्यूज. बट आपने मदद करी किसी की? नहीं करी. आपने पैसा है ना सारा अपनी ग्रोथ में लगाया और कंपाउंड करने में, अगेन आप लिस्ट में टॉप में रहना चाहते हो, दैट इज नॉट सक्सेस. पर 4 लोगों की जेन्युइनली मदद भी करो जिनको जेन्युइनली जरूरत है ना, सो दैट यू नो कि भाई इस पैसे को मल्टीप्लाई सिर्फ अगर कैश में करना है, दैट इज अ डिफरेंट टाइम. बट यू वांट टू मल्टीप्लाई इन टर्म्स ऑफ इमोशन, है ना, इन टर्म्स ऑफ वेलफेयर समथिंग. शास्त्र भी यही कहते हैं कि अगर आपके 100 रुपए हैं तो भैया इतने पैसे आपको अपने रूटीन के लिए रखने चाहिए, इतना आपको परसेंटेज है आपको, है ना, सेविंग्स पे रखना चाहिए, इतना आपको दान पुण्य में लगाना चाहिए. थिंग्स आर वेरी सेट, है ना, इन लाइफ. सो सक्सेस की डेफिनेशन ये है कि इफ यू आर गुड एट समथिंग और यू आर सक्सेसफुल एट समथिंग, प्लीज पास इट ऑन. एंड दैट इज व्हाट आई एम डूइंग, है ना. दे कॉल मी मॉन्क विदाउट सेफ्रन डॉग, बट मैं भी वही कर रहा हूँ कोशिश. एग्जैक्टली, आई एम क्रिएटिंग लॉट ऑफ मॉन्क्स, और मैं उनको बता के भेजता हूँ. मैं इफ़ यू गो होम एंड तेरे बाद में अगर तेरा भाई मेरे पास आ रहा है, ठीक है, देन आई एम ए फेलियर. जितना मैंने सिखा दिया, काम कर दिया, आई वॉन्ट यू टू ट्रीट, है ना, 10 मोर पीपल एट योर होम. घर पे ये सिखा, भाई तेरे को कॉन्फिडेंस है, मेरे भाई में कॉन्फिडेंस की कमी है, मैं तू क्या सीख के गया है, या पास इट ऑन. बताओ उसको जरूरी है दोबारा फीस जमा करनी फिर इधर आना, डोंट डू दैट. ठीक है. तो आई हैव क्रिएटेड सो मेनी मॉन्क्स, बॉयज एंड गर्ल्स. ठीक है. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एटलीस्ट जितना मेरे को आता है, छोटा मोटा जितनी मेरी काबिलियत है, मैं लोगों को सिखाऊं, पास ऑन करूं. तो वो भी जाकर के बताया. कई लोग बताते हैं कि सर मैंने अपने 4 दोस्तों को बता दिया, सर मैं सुसाइड करने निकला, मैंने 2 लोगों को और रोका सुसाइड करने में. गुड. सो यू शुड पास इट ऑन, दैट इज द रियल सक्सेस. ये तो क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, मेरे को नंबर 1 लिस्ट पे जाना है, दैट इज नॉट सक्सेस. ठीक है. सब कुछ नंबर के लिए ही करना है आपने, एंड पोजीशन के लिए, रिवॉर्ड के लिए. आई थिंक यू आर ऑन रॉन्ग ट्रैक. माय डेफिनेशन. That's a beautiful way to look at success, you know. Many people have come on the podcast, they have talked about contentment being their parameter for success, joy being their parameter for success, or many things like that. But yeah, passing it on and enabling others to do what you... Self-empowerment करने के बाद में you empower others ना. मैं कॉन्फिडेंटली बोल लेता हूँ, बट मेरे जो स्टूडेंट है कोई कह दे कि भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, आप खड़ा करके देखिए उनको, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, चलती हुई ट्रेन में, लाल किला, ढाबा, एवरीवेयर दे स्पीक कॉन्फिडेंटली. मैं यू स्पीक, बोला सर आई स्पीक, जान निकाल दूंगा नहीं बोले, बोला सर खड़ा कर दो कहीं पे भी. एंड फोन करते हैं, आई कैन शो द वीडियो मैसेज. कीर्ति का मैसेज है, चीख रही है, सर आई एम फीलिंग सो हैप्पी, सर मैंने मेट्रो में लेक्चर दिया चलती हुई ट्रेन में, सर पीपल क्लैप, सर आई एम सो हैप्पी. मैंने करा, कोई लाल किले पे खड़े होकर दे रहा है, कोई इंडिया गेट पे खड़े होकर बोल रहा है. तो मुझे लगता है गुड यार, मेरे को बहुत टाइम लगा सीखने में ना, बहुत कॉन्फिडेंस कमजोर था, स्टेचू बन के बार बार खड़ा होता था, है ना, कि कोई देख ना ले. मतलब इमेजिन क्लास 11 में आप स्टेचू बन रहे हो, इतना कॉन्फिडेंस कमजोर है. बट आज इतने प्रोडक्ट तैयार कर दिए हैं, मैं नाम बता सकता हूँ हजारों लोगों को, जिसको इंग्लिश नहीं आती थी वो इंग्लिश बोलता है. इंग्लिश के लिए पैसे की जरूरत नहीं, इंग्लिश कैसे सीखें, कैसे क्या सीखो, कॉल सेंटर में कॉल करो, दिन भर उनका यही काम है, फ्री में बैठो, दिन भर देखो, रोज नए सवाल पूछो, दिन भर इंग्लिश में बातचीत है, नो मनी, व्हाई यू वांट टू जॉइन एकेडमी. आई डिड एग्जैक्टली दैट. हाँ, 10th grade के बाद से I started calling call centers and randomly asking questions and queries so that I could just open up. क्योंकि वही हमारा माहौल था to learn. वही medium था. So you know, you make most of your opportunities. We didn't have money to go to any classes. We didn't have any resources. Studied from a basic school. You know, from a KB smart, and all of that. Today. You've come a long way, you know. I mean, learn from this. Through this example, I'm just thinking back, you know, कि हमारे time पे what I used to do back then, because I was also underconfident. I also didn't know English. I'm not a product of a convent school where we have theatre club, music club, debating societies and blah blah. हम आपस में debate कर लेते हैं. ऐसा कुछ था नहीं ना, क्या करोगे? So I used to call like religiously every single day. I used to call to a
call center, any call center. Us time Tata Docomo used to be the landline phone. I will call the Tata Docomo call center and I will talk to them in English. Whatever English I knew as a 10th class student. And I kept on doing this for 2-3 years. I kept on doing this religiously just to improve on my language and confidence that can I speak to another human being in a language that I don't know. That. So ऐसे सीखते हैं आदमी. और आज समझ में आता है when it has paid in some manner, I have become somewhat capable of understanding the language and navigating my way through it. तो समझ में आता है that you know those little things. सी लैंग्वेज के लिए बोलते हैं सर लोग नहीं आते, इंग्लिश नहीं आती. मैं इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, वो मत बनाओ इसका, यू नो. यार इंग्लिश भी है, लोग इंग्लिश बोलने से कौन सा कनेक्ट कर जाते हो आप. लैंग्वेज जो भी बोलो, आइडिया शुड बी टू एक्सप्रेस वेल एंड टू कनेक्ट. महसूस करके बोलो. यहाँ से कंटेंट नहीं है, मैं पैदा करो. मैं नहीं बताता हूँ सर वो लेक्चर देना है, कंटेंट नहीं है, पैदा करो. फिर बोला सर पैदा कैसे करना है, मैं बताता हूँ तुम्हारे को. 25 सेकंड में 30 सेकंड में भी 2 मिनट में लेके आता हूँ लोगों को, रूम में लेके जाता हूँ. मैं चल मैं करके दिखा. तो लोग खड़े होकर कहते हैं सर ये 15 सेकंड नहीं बोल पा रहा था, इतना जबरदस्त लेक्चर दिया, गूज़बम्स आ गए, क्या करा आपने. तो वो बाद में बताऊंगा, पहले बताओ परफॉर्मेंस. कहते हैं सर ये तो पूरा चेंज हो गया. 3 मिनट में भी करता है आदमी. या तो आप एहसास करा दो किसी को, रियलाइज कि व्हाट इज द पोटेंशियल, और यू हिट हिम वेरी हार्ड एंड बिलो द बेल्ट. आदमी करता है काम पक्का. सक्सेस कंटेनमेंट वगैरह ये सब डेफिनेशन तो ठीक है, बट यू नो फिलॉसफी इज समथिंग डिफरेंट. बट ऑन ग्राउंड सक्सेस एक्चुअल में यही है. बट हर आदमी ने, मैं देखता हूँ फलाने ने ये अपना इसको वो किया है, क्या कहते हैं, इनॉग्रेशन किया है. हर आदमी को बड़ा शौक है. मैं गया था एक जगह, वहाँ पे बहुत सारे नाम लिखे हुए, छोटा सा कोई कमरा बना रखा है, इनॉग्रेटेड बाय सो एंड सो, इनॉग्रेटेड बाय सो एंड सो. मैं अगले दिन पेंट लेके आया, सब पे मैं मार दिया मैंने. लोग बोल के भाई सारे लोग जितने भी है ना इतिहास में अमर होना चाह रहे थे, मैं होने नहीं दूंगा किसी को भी. जिसका भी नाम लिखा है रिस्पेक्टिव व्हाट रैंक है कि मैं रिमूव इट. अरे जो मैं इस पे लगे हैं 5,000 रुपए संगमरमर का टांगा है यहाँ पे, हु इज कमिंग टू सी यू, व्हाई यू गेटिंग मैड बिहाइंड दिस. ब्रेक इट, तोड़ दो सारे. सिर्फ एक मंदिर है, मैं मंदिर को छोड़ करके रेस्ट एवरीथिंग, बिकॉज वहाँ लिखा है ट्रुप्स ने मिलकर बनाया, बाकी सबके नाम उड़ा दो. मैंने सबके उड़ा दिए. समबडी केम एंड सेड, किया मैंने यहाँ लगाया था, मेरा पत्थर था, ऐसा उड़ा दिया मैंने. हाउ कैन यू डू दिस. मैं सर अभी तो है नहीं, कुछ नई चीज तोड़ के दिखाता कैसे. दिस इज हाउ आई डू इट. ठीक है, उसके लिए काम कर रहे हो, वही 5,000 रुपये कहीं और लगा देते हैं. जवानों के लिए ज़्यादा अच्छी चीज़ है. बट यू नो ह्यूमन नेचर इज लाइक दिस. हर आदमी इतिहास में अमर होना चाह रहा है. बहुत अच्छे अच्छे लोग आगे चले गए. जब आपके टाइम है तब कुछ काम कर लो, अमर बाद में हो जाना है ना. आई वांट टू बिकम गॉड. नॉर्मली ह्यूमन बीइंग गुड. एज ह्यूमन स्पीशीज वी आर एक्सेप्शनल, यू नो, वी आर गुड. राइट. Thank you so much, sir, for coming on the Journey Not Within podcast. Pleasure is all mine. I told you I felt connected. That's why I'm here. You've shared some really beautiful things, and I'm really hopeful that this episode, that is what I wanted out of this episode, to help youth connect with their own selves, to be more confident, to learn to manage their fear, to learn to manage their anxiety from a soldier's perspective. Because I think nobody Soldier does is it by heart, not Yes. by uniform. And Yes. I keep telling people, you know, it is by the attitude. आप soldierly attitude रखो and learn those values rather than, you know, just momentary things. Whether it is Kargil Divas, 15th August, anything, and one should not be momentary. Uniform dependent नहीं होना चाहिए. So through your inspiring stories, वही exactly idea था कि this episode I just wanted to make for the youth who are feeling little lost in life, who are not able to take the hardships of life, anxiety is engulfing them. उसको किस तरह से आपके थ्रू एक मोटिवेशन मिले, आपके थ्रू एक पर्सपेक्टिव मिले, कुछ समझ में आए, दो लोगों को भी समझ में आ गया. I think it's worth it. Yes, that is what we're hoping for. Thank you so much once again. Not at all. Pleasure is all mine. All right, if you have made it to the end of this video, please do remember to subscribe, like, comment and share. Because अगर मैं ये नहीं बोलूँगी तो मैं YouTuber कैसे बनूँगी? So guys, do the needful. Thank you so much for watching. I really hope that you're enjoying these conversations. And if there's any feedback, comment section, make that your friend. Thank you.